welcome to the Beginner's Talk. And this is the podcast that I wanted to start for beginners who are stepping into the world of entrepreneurship. And the reason that I wanted you to be here is because I've been following you on LinkedIn since a long time, and I've seen your journey, entrepreneurial journey, like how you started in, I guess, 2019 from Yeah, M&M, right? M&A, M&A. M&A. Right. So, and then you have recently started the Gossip Circle. Yeah, So too cool. many ventures, too many things going on. That is the reason you are the perfect candidate over here. All right. So, Let's see. I will definitely. try to provide all the insights so that people can get how to build a company and how to build a startup. Nice, nice. I mean, that's what we are looking for, me and of course the Yeah. audience. So, Ritik, how did it started and when did it started? So it started when I was around 13 or 14, when I used to go to my father's shop, sit there, and used to sell products and whatever his business is about. So from my from childhood only I got this kida ki I have to do business because my father is businessman. I have seen him growing business and doing stuff. So from there I got the inner me ki yeah, I wanted to build business and job के लिए मैं नहीं बना. I'm not saying doing job is wrong thing, but personally, my opinion, I don't feel like I am more into jobs and working in corporate culture. I am more of a guy who wanted to build, who love challenges, who likes to build things on his own, who likes to build his things from zero to one. Right. So from childhood only, I was sitting in with my father. I see how they sell products, how to sell things, what is margin, what is profit, what is it. So from there only, my brain told me that yeah, profit is something which we have to focus in coming time. So yeah, from there it all started. I was in my hometown till ninth standard. Till ninth, I was with my father. I was helping him with his growing his business. And after ninth, I shifted to Kota, Rajasthan for JEE preparation. So Okay. usually people go on 11th and 12th, right, to Right, do right, JEE right. preparation. I went 1 year before because my family is like कि maybe एक साल पहले जाएगा तो you will get to know things better and once you एक साल हो जाएगा by the time you will reach 11th class so you will get settled down good so you can focus on studies. But of course वो एक myth था, हुआ नहीं वैसा. बट या फ्रॉम देयर आई वेंट टू कोटा एंड वहां से फिर मेरे वेंचर्स एंड सारी जर्नी स्टार्ट हुई कोटा जाके. आई हैवंट डन आईआईटी की प्रिपरेशन वो बट बाकी सब चीजें मैंने किया. ओह, मतलब आपने तो या सरप्राइज दे दिया घर वालों को उन्होंने। काइंड ऑफ या बट नाउ दे लाइक जब कॉलेज मेरा वो हो रहा था एडमिशन हो रहा था देवर लाइक कि यार आईआईटी और वो हर मिडिल क्लास फैमिली का एक माइंडसेट होता है कि लड़के को इंजीनियरिंग करने भेजा है लड़का जेई राइट, कर राइट। रहा है तो फिर वो. बट नाउ माय पेरेंट्स आर वेल हैप्पी एंड इवन मी वेरी वेल सेटिस्फाइड कि यार अच्छा हुआ जेई नहीं हुआ वरना मैं आज यहाँ नहीं होता. मतलब आपके बिजनेसेस मैंने देखे सो लाइक यू हैव आई गेस गॉसिप सर्कल इज बी टू सी एंड रेस्ट ऑल आर बी टू बी. Yeah, no, Expel is also B2C plus B2B both. ओके. M&A was also B2B plus B2C both. तो आपके फादर का बी टू बी था या बी टू सी था? No, my father business was B2C. My father is having his own electronic shop in which he sells electronics item like LED TV, refrigerator, washing machine and stuff from past 20 years in my ओके. hometown. Yeah. सो वेयर आर यू फ्रॉम लाइक इन इंडिया? I'm from Madhya Pradesh, MP. There ओके. is very small jilla called Damo. I'm from Damo district. एंड वहाँ पे ही मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ. सो मेनी आई हैव सो मेनी ब्रदर्स एंड माय फादर लाइक देयर आर फाइव. माय फादर हैज फाइव ब्रदर्स. ब्रदर्स, तो राइट. हम सब वहाँ पे सब साथ में रहते हैं. वी हैव डिफरेंट डिफरेंट ओन बिजनेसेस ऑफ देयर ओन. So my father used to take care of electronic businesses. He built his on his own राइट. 20 years back, around ओके. 1988, 1998, 1999, somewhere. ऑलराइट. तो वहां से मतलब फिर आपको एसेंस आना शुरू हुआ बिजनेस का?
यस यस, सो एंड फैमिली, माय फैमिली इज कम्प्लीटली ऑल अबाउट बिजनेस। मेरे फैमिली में जो भी कुछ है, मैक्सिमम सारे सब बिजनेस पे ही हैं। फ्यू आवर्स इन जॉब, वेरी वेल, अच्छे पोजीशंस पे। बट मैक्सिमम जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है वो सब बिजनेस का ही है, तो वहां से ही देखा भैया लोग बिजनेस कर रहे हैं। फादर यूज टू सिट हिज ओन बिजनेस, वो पूरा देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब चीजें हैं। तो वहां से ही एक अंदर था कि करना है तो फिर खुद कुछ का खुद कुछ कुछ का खुद खुद का कुछ करना है, अगर वैसा एक माइंडसेट था कि खुद का कुछ करेंगे एंड वैसे। तो जब आप कोटा गए एट द एज ऑफ 15, प्रोबेबली 10th स्टैंडर्ड में आप गए थे, तो या 15th के, 15th या। तो वहां पे भी आपने अपना मतलब कुछ स्मॉल बिजनेस ट्राई किया था? नहीं, जब मैं कोटा गया था ना, तब ऐसा कुछ माइंडसेट लेके नहीं गया था कि आई वांटेड टू बिल्ड अ बिजनेस या कुछ वैसा। आई वाज देयर कि जेई करना है, जेई वाला माइंडसेट है। एंड टेंथ धीरे धीरे करके क्लियर हुआ, टेंथ में मेरे फ्रेंड्स मिले, फ्रेंड्स बना। राइट नाउ आई एम, जो मेरा एक्स पहले में को फाउंडर है, वो हम्म। उसको मैं टेंथ में मिला था। एमएनए का जो मेरा को फाउंडर है, उसको भी मैं टेंथ में मिला था। एंड अभी जो मैं गॉसिप सर्कल कर रहा हूँ, वो सेम को फाउंडर है जो एमएनए रन करता है, एंड हम टेंथ में मिले। तो मैं जिनके साथ में भी काम कर रहा हूँ, मेरे 8 9 ईयर्स ओल्ड फ्रेंड्स हैं। राइट, सो यू हैव दैट ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। या दैट्स व्हाई आई एम बिल्डिंग विद देम ना, एग्जैक्टली, बिकॉज आई राइट नो कि राइट। आई वेरी बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड स्टफ। तो उस वे में हम साथ में काम कर रहे हैं। सो क्या था कि टेंथ में वी वर लाइक कि हाँ, स्कूल में था, इतना कुछ सीन नहीं था उस टाइम, लग रहा था कि कुछ करेंगे देखेंगे। एंड देन मंथन इज समवन जो एमएनए का को फाउंडर है, मेन द फेस बिहाइंड एमएनए। ही इज द वन जिसको म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था, ही स्टार्टेड एमएनए। ही एंड आनंदू जो मेरा एक्सपेले में को फाउंडर है, उन दोनों ने ओके। एमएनए स्टार्ट किया। एट दैट टाइम मैं उनका पार्ट नहीं था, बिकॉज मैं नया नया कोटा आया था, एंड वो लोग पहले से ही उस स्कूल में थे, मैं टेंथ में उस स्कूल ज्वाइन किया था। तो अच्छा। फिर वो लोग थे, बट देन मेरे फ्रेंड्स बने, फिर अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हो गए। देन आई एम लाइक कि यार मैं भी करता हूँ साथ में तुम्हारे। देन वी थ्री यूज टू गो टुगेदर, वी थ्री यूज टू गो शूट्स करते थे हम साथ में घूमते थे, सारी चीजें साथ में करते थे। तो वहां से फिर एक किक मिला कि कुछ अब एक रास्ता मिल गया है कि हाँ आप कुछ बना सकते हैं। देन वहां से फर्स्ट वेंचर फिर एमएनए का स्टार्ट हुआ, वहां से फिर जर्नी चालू हुई। मतलब 11th क्लास में ये सब चीजें शुरू हुआ, टेंथ में तो ऐसा हम कुछ थी नहीं। 11th में मैंने स्कूल छोड़े थे, 11th में हम सेपरेट हो गए थे, बट सेम सिटी में थे। 11th में मैं कोचिंग कर रहा था, मंथन अपने स्टडीज कर रहा था, और एमएनए साइड बाय साइड कर रहा था। बट हम कनेक्टेड थे, एक ही शहर में थे, कोटा में ही था मैं भी। तो मैं कोचिंग छोड़ के और वो सब चीजें, कोचिंग को मैंने एक पार्ट टाइम बना दिया था, एमएनए फुल टाइम कर देते, तो वहां पे पूरा ध्यान जाता था, पूरा वो हम करते थे। तो बेसिकली आपका तो चलो फैमिली बैकग्राउंड और आपका जो फैमिली बिजनेस था, आपके जो दो फाउंडर्स मतलब जो आपके फ्रेंड्स थे उस टाइम पे, अभी भी हैं, तो वो उनका भी फैमिली बिजनेस था? हाँ, मंथन का भी फैमिली बिजनेस है। आनंदू का फैमिली बिजनेस नहीं है, हर हिज मदर इज अ डॉक्टर, एंड उसके ओके। पापा पहले काम करते थे, बट अभी मतलब उनका भी कुछ फैमिली बिजनेस है, बट ही इज फ्रॉम केरला ओरिजिनली। तो वहाँ ऑलराइट। पे उनका फैमिली बिजनेस वगैरह है, जो उनका फैमिली वगैरह देखते हैं, बट वो कोटा रहता था फ्रॉम पास्ट 15 16 ईयर्स। तो वहाँ हम उससे मिले थे। तो हाँ, दोनों का ही ऑलमोस्ट फैमिली बैकग्राउंड है। तो उस वे में उनके भी अंदर था कि लेट्स बिल्ड समथिंग ऑफ आवर ओन, ऐसा। राइट राइट। तो मतलब वो एक सेम चीजें सबने साथ में देखी है, बचपन से ही सब राइट राइट बिजनेस राइट। में है, तो वो एक बेसिकली माइंडसेट। मंथन का इंटरेस्ट आ गया था कि उसको म्यूजिक में कुछ बड़ा करना है, उसको म्यूजिक बहुत पैशनेट करता था। वहां से मैंने स्टार्ट किया, उन लोगों ने खुद के ओरिजिनल सॉन्ग्स बनाना चालू किया। एंड देन फिर मैं उनकी जर्नी का पार्ट बन गया, देन फिर हम तीनों साथ में बिल्ड करने लगे वैसे। सो वो अब एमएनए स्टार्टिंग के, फेज का था। तो एमएनए का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था, आप थोड़ा सा बताएंगे लाइक व्हाट द बिजनेस So मॉडल एंड हाउ इट स्टार्टेड? M&A full form is mecenat. Basically, there are मैसेनाट, so ओके। many young creators इंडिया में हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, और जो अपना टैलेंट शोकेस करना चाहते हैं। तो राइट। M&A इज अ प्रॉपर म्यूजिक स्टूडियो प्रोडक्शन हाउस, जहाँ पे हम यंग क्रिएटर्स को, यंग जो बच्चे हैं जिनको अपना टैलेंट शो करना है, तो हम उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि वो हमारे साथ कोलैब करके हमारे साथ काम कर सकते हैं हमारी म्यूजिक वीडियोस में और सब चीज। तो सो स्टार्ट हाउ डिड हमने इट? इस चीज से किया था। बेसिकली
शुरू में हमने हमारा मोटो ये था कि हमको ओरिजिनल कंटेंट बनाना है, ओरिजिनल म्यूजिक्स क्रिएट करने हैं खुद के। सो ओके। हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, मतलब यूट्यूब चैनल पहले से लोगों ने स्टार्ट किया, मैं बाद में ज्वाइन किया। यूट्यूब पे हम ग्रो करने लगे, धीरे धीरे हमने खुद का कंटेंट डालना चालू किया, ओरिजिनल सॉन्ग्स हम बनाने लगे, उसको शूट्स करने लगे। देन फिर हमने थोड़ा सा उसको डाइवर्ट किया इन अ प्रोडक्शन हाउस, जहाँ पे हम और लोगों को ऑन बोर्ड लाते थे, जहाँ पे यंग टैलेंट, सपोज देयर इज वन गाय, उसको एक्टिंग बहुत पसंद है, उसको एक्टिंग करना है, बट उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है क्योंकि उसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, उसका फेस नहीं। सो वी राइट। व्हाट वी डू इज कि हम उसको प्रोवाइड करते थे कि आप हमारी म्यूजिक वीडियो में उसका पार्ट बनो, आप उसमें एक्ट करके दिखाओ, ताकि आपको और लोग जाने और लोगों तक आपकी रीच हो। देयर इज वन सिंगर जिसको गाना गाना बहुत पसंद है, बट उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है जहाँ पे वो गाना गाए, या वो खुद के गाने नहीं बना पा रहा है, तो हम उसको प्रोवाइड करते थे कि आप हमारे साथ आके, हमारे साथ कोलैब करके आप अपना क्रिएट कर सकते। वहां से फिर थोड़ा डाइवर्ट करके चला, फिर हमने पूरा प्रोडक्शन हाउस वगैरह शिफ्ट किया, और उस लेवल पे अभी चल रहा था। ये वाला जो M&A वाला जो बिजनेस था, इसमें मतलब वर्क कैसे करता था? क्रिएटर्स डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे होते थे? हाँ, तो मैं बेसिकली, हमने जब स्टार्ट किया था तो हम ये कोटा में थे, तो हम ये ट्राई करते थे कि कोटा के जितने इंडिविजुअल क्रिएटर्स हैं उनके साथ कोलैब करें, और उनके साथ उनको ऑनबोर्ड लाके हम म्यूजिक वीडियोस में काम करें, और उनको ग्रो करवाएं, और हम साथ में हम भी ग्रो हों। हमारा मोटो शुरू में क्लियर था कि हमको म्यूजिक कंटेंट बनाना है, ओरिजिनल म्यूजिक्स क्रिएट करना है, ओरिजिनल म्यूजिक वीडियोस, एल्बम्स क्रिएट करना है बेसिकली। बट हमको ये था कि हम और लोगों को ऑन बोर्ड लाएंगे, जो यूथ है, जो यंग है। अभी क्या होता है, आपको अगर म्यूजिक वीडियो बनाना है, आप किसी सेलिब्रिटी या किसी फेमस बंदे को लोगे ताकि आपका वायरल हो जाए। हमने राइट। वैसे शुरू नहीं किया था, हमने लोकल्स जो है, जो लोकल्स आर्टिस्ट है, उनके साथ कोलैब करके उनको हम ऑन बोर्ड लाए थे, ताकि उनको अपॉर्चुनिटी मिले, और साइड बाय तो साइड हमारा भी ग्रोथ हो पाए। राइट, राइट, राइट। तो उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए, आई मीन, यू वांटेड देयर कंटेंट टू रीच टू वाइडर ऑडियंस, राइट? या तो उसके लिए आपका यूट्यूब जो चैनल था, वही एक प्लेटफॉर्म था जिसके थ्रू आप उनका जो शुरू में कंटेंट वही था? एक प्लेटफॉर्म था बेसिकली। हमको ना उनका कंटेंट नहीं, हमको उनकी स्किल को लोगों तक पहुंचाना था। राइट। सपोज यू आर द हाँ। वन जिसको राइटिंग बहुत पसंद है, बट यू आर नॉट गेटिंग प्लेटफॉर्म कि कहाँ मैं शोकेस कर पाऊँ। सो व्हाट वी डू इज, आप हमारे साथ आओ, आप हमारे साथ राइटिंग्स करो, आप अपनी हम्म। राइटिंग्स कुछ लेके आओ, आपने कुछ म्यूजिक लिखा है, तो हम उसको कंपोज करेंगे, उसको हम मिक्स मास्टर करके म्यूजिक बनाएंगे, देन हम उसको लोगों को प्रेजेंट करेंगे, ओके। जिसमें आपका भी नाम रहेगा, आपका भी पार्ट रहेगा, और आपकी भी रीच बढ़ेगी, और साइड बाय साइड हमारा भी ग्रोथ होगा। ऑल राइट। सो फ्रॉम देयर नाइस। एमएनए स्टार्टेड विद दिस बेसिक थिंग कि म्यूजिक में कुछ हमको करना है। तो जैसे आपने बताया कि आप उसमें खुद खुद का एल्बम बनाना चाहते थे, तो खुद के लिए लाइक यू हैव सॉन्ग राइटर्स एंड म्यूजिक कंपोजर? नो नो, सो वी डू बाय अवर सेल्फ ओनली। हमारा सॉन्ग राइटर हम खुद ही थे। म्यूजिक, मंथन इज वेरी गुड सिंगर एंड वेरी गुड कंपोजर एंड मिक्स मास्टर। पूरा म्यूजिक का पार्ट वो देखता था। आनंदू पूरा वीडियो कैसे होगा, कंटेंट किस तरीके से जाएगा, क्या एग्जीक्यूशन है, वो देखता था। मैं पूरा मार्केटिंग साइड एंड पूरा डायरेक्शन वगैरह वो देखता था। उस वे में हम तीनों ही सारा करते थे। स्टार्ट ये अर्ली स्टेज का बता रहा हूँ, जब मैंने स्टार्ट ही हुआ था। ओके। एंड देन हाउ इट इवॉल्व्ड? ओके, सो आफ्टर दैट आनंदू लेफ्ट एमएनए, थोड़ा कुछ रीजंस के कारण उसको और भी चीजें करनी थी। देन अनदर पर्सन अखिलेश, जो एमएनए का बहुत अच्छा पार्ट था, डे वन से ही था, बट थोड़ा ऑन ऑफ चलता था, बट हाँ, देन ही बिकेम द कोर टीम मेंबर। देन आफ्टर ऑलमोस्ट 11th एंड के बाद, मी, मंथन एंड अखिलेश, हम तीनों एज अ कोर टीम मेंबर एमएनए को रन करते थे, एंड उसको बिल्ड करते थे, ओरिजिनल कंटेंट बना के, ओरिजिनल सारा चीजें बिल्ड करके, ये सब कुछ। तो फिर ऑलमोस्ट 2.5 3 years तक मैंने में काम किया है, जहाँ पे हमने बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस बनाए हैं। मैसेनार्ट करके यूट्यूब पे चैनल है, MNA और मैसेनार्ट। तो आप वहाँ पे जाके देखोगे तो आपको मिल जाएंगे, बहुत सारा ओरिजिनल कंटेंट हम बना चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे म्यूजिक प्रोड्यूस किया है हमने, और प्रोडक्शन हाउस वगैरह रन किए हुए हैं, सारी चीज़ें की। सो 2.5 years तक मैं MNA में था। देन ड्यू टू थोड़ा और इधर उधर का मेरे पास अपॉर्चुनिटीज थी, एंड मेरे को और चीज़ें रन करनी थी, थोड़ा फाइनेंशियली भी और थोड़ा वो देखना था, तो आई लेफ्ट MNA। बट ऐसा नहीं है कि अभी मैं दूर हूँ उससे। मंथन अभी भी मेरा एकदम भाई जैसा ही है। MNA अभी भी मेरे पार्ट ही हूँ मैं उसका। ऑफिशियली इन टर्म्स ऑफ पेपर नहीं हूँ, बट हाँ, हर कभी भी सपोर्ट में और उस चीज़ में एनी टाइम MNA हमेशा रहेगा ही, और हमेशा है ही। राइट, राइट। तो आपका जो बिजनेस मॉडल था उसमें लाइक अर्निंग कैसे होती थी? तो शुरू में अर्निंग नहीं था। शुरू में हम ये सोचते थे कि हम ओरिजिनल कंटेंट बनाएंगे, ओरिजिनल म्यूजिक बनाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत कम लोग थे। 2016-17 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे बहुत कम था यूट्यूब पे, और बहुत लोग नए नए घुस रहे थे यूट्यूब पे। राइट। उस टाइम अगर आप देखोगे, अभी जितने ही सारे बड़े क्रिएटर्स है, वो 2015 2016 के ही बॉर्न है यूट्यूब।
हम्म, तो उस टाइम हम लोगों ने भी किया था कि हमारा अगर कभी एक आध सॉन्ग अगर वायरल चला गया, थोड़ा अच्छा चला गया, तो वहां से फिर रेवेन्यू स्ट्रीम बनेगा, वो सारा प्लान था हमारा अर्ली स्टेज। राइट। तो इस अभी पे में अभी हमारा वर्क। तो अभी कैसे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है एमएनए में? सो अभी अभी मैं एमएनए का पार्ट नहीं हूँ, बट मंथन अभी एमएनए रन कर रहा है फ्रॉम पास्ट 6 years कॉन्स्टेंटली, बिकॉज उसका ही मेन आइडिया था। एंड अभी हम्म। भी वो कर रहा है। तो अभी एमएनए एक प्रॉपर फुल फ्लेज म्यूजिक स्टूडियो है कोटा राजस्थान के अंदर, हम्म। जहाँ पे पूरा प्रॉपर फिजिकल स्टूडियो है, जहाँ पे किसी को भी अगर म्यूजिक रिकॉर्ड करवाना है, मिक्स मास्टर करवाना है, कंटेंट क्रिएशन करवाना है, वीडियो एडिटिंग करवाना है, थंबनेल से लेके स्क्रिप्ट राइटिंग से लेके सारी चीजें एमएनए एक सिंगल प्लेटफॉर्म, सिंगल इन हाउस सारा चीजें प्रोवाइड करता ओके। तो ये क्रिएटर्स के लिए भी है नाउ, मस्ट बी है। दे ये हैव स्टार्टेड सबके डूइंग लिए, फॉर बिजनेसेस के लिए भी सब अब ये वो? आप बिजनेस के लिए भी, क्योंकि एट द एंड आपको रेवेन्यू स्ट्रीम ओपन करना पड़ेगा ना, आप कब तक उसको राइट। चलाते रहोगे हाँ यूट्यूब पे हाँ वीडियो हाँ। डाल के। तो रेवेन्यूज राइट। के लिए सारे सोर्स हैं जहाँ पे सारी चीजें रन होती है, एंड मंथन इज द सिंगल पर्सन हु इज हैंडलिंग ऑल दिस। उसकी टीम है, उसके पूरे सब कुछ प्रॉपर कंपनी है एमएनए, तो उसमें वो पूरा देखता है, पूरा काम करता है। इससे क्रिएटर को क्या बेनिफिट होता था कि उसको एक ऑडियंस मिल जाती थी अपना टैलेंट शोकेस हाँ, करने के लिए, उसको स्किल। ऑडियंस मिल जाता था स्टार्टिंग लेवल पे। बट अभी एक काइंड ऑफ हम स्टूडियो है, प्रॉपर प्रोडक्शन हाउस है, हम्म। जहाँ पे आपको, आपके पास आइडिया है तो हम आपको आइडिया को स्क्रिप्टिंग में भी कन्वर्ट कर देंगे, हम म्यूजिक भी करवा देंगे, आपका रिकॉर्ड भी करवा देंगे, एडिटिंग भी करवा देंगे, सारी चीजें करवा देंगे, सब कुछ ए टू जेड नाइस। प्रोवाइड करते हैं। बहुत बढ़िया। ऑल राइट। तो ये एमएनए का जर्नी था आपका। तो राइट। इसमें इसमें जब यू नो व्हाट इज द फर्स्ट किक, जब हमको बेसिकली हमारा कोई पहला कोलैबोरेशन होता है, या कोई भी एक पहला क्रिएटर जिसको आपने कोलैबोरेट किया हो, सो लाइक हाउ डिड यू गाइस रीच आउट टू देम? सो पहले तो शुरू में सब फ्रेंड्स के उसमें ही होता है कि किसी का फ्रेंड है जिसको इस म्यूजिक में इंटरेस्ट है, या जिसको सिंगिंग अच्छी लगती है, तो यार साथ में काम करते हैं। एवरी हाँ। एवरी रिलेशन ना, जो भी बिजनेस में चालू होता है, मैं बताऊंगा, जो हम्म। भी बिजनेस में आप रिलेशन चालू कर रहे हो, चाहे वो कॉर्पोरेट में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, सबसे बेस्ट वे टू स्टार्ट इट वाया फ्रेंडशिप। आप फ्रेंड्स राइट। बनो, फ्रेंड्स बनाओ, कनेक्शंस यूज करो आपके, वहां से फिर आज नहीं तो 6 महीने बाद आपको कहीं ना कहीं कुछ काम मिल ही जाए। राइट। राइट। हाँ, उस वे में आप बिल्ड कर सकते हो बढ़िया अपनी ऑडियंस एंड रीच आउट टू पीपल, वैसे कर सकते हो वाया फ्रेंड, वाया रेफरल काइंड ऑफ थिंग स्टार्ट में। गुड गुड। आई मीन हाँ, ये जनरली मैंने भी नोटिस किया। सो व्हेन आई स्टार्टेड दिस पॉडकास्टिंग जर्नी, आई द फर्स्ट गेस्ट दैट आई इनवाइटेड वाज अ फ्रेंड ऑफ फ्रेंड या ऑफ, या आई बिकॉज वो मीन बहुत एंड इजी हो जाता है ना कि आप रीच हाँ। आउट करके उसको बुला सकते हैं एंड वो कर सकते हैं, तो बहुत इजी और कन्वीनियंट होता है वो। राइट राइट राइट। ये 100% मैं एग्री करूंगा इस बात से आपकी। ऑल हम्म। राइट। तो ये आपका एमएनए का आपने 2.5 साल तक रन किया, एंड वो आपका जर्नी था 11th से 12th आपका हो गया होगा वहीं पे खत्म? हाँ, मतलब मैंने रन किया मैंने लॉकडाउन तक। लॉन्ग 2019 लॉकडाउन कोविड। हाँ। 2019 तक एमएनए का पार्ट था। एंड देन उसके बाद फिर आप मेटा एंड मोर, ये या आपने सो स्टार्ट किया था? ये एक मार्केटिंग एजेंसी थी हाँ। फॉर वेब थ्री स्पेस। आपने अगर देखा हो 2019 2020 में वेब थ्री का बूम आ रहा था धीरे धीरे, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसीज वगैरह। राइट राइट तो राइट। वहाँ फिर मुझे थोड़ा पोटेंशियल दिखा कि मार्केटिंग में अभी इस स्पेस में बहुत कम लोग हैं। तो मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत कुछ ढूंढा, कहाँ हम क्या कर सकते हैं, किस लेवल पे मार्केटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। देन आई स्टार्टेड दिस कंपनी कॉल्ड मेटा एंड मोर, जिसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग और वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करता था स्पेसिफिकली फॉर वेब थ्री इंडस्ट्री। नॉट ग्लोबली सारे एसईओ वो सब नहीं, बट वेब थ्री स्पेस में जो भी प्रोजेक्ट आ रहा है, जो भी लोग बिल्ड कर रहे हैं, उन सबको अपॉर्चुनिटीज और लोगों से मिलाना, कम्युनिटी बिल्डिंग, ये सारी चीजें मैं प्रोवाइड करता था। तो उसमें कोई डील क्रैक हुई थी आपकी, मतलब लाइक हाँ, हाउ? उसमें उसमें बहुत कुछ अच्छा चल रहा था उस टाइम पे। मैंने कम्युनिटीज लोगों के लिए बिल्ड की थी, मैंने अपनी भी कम्युनिटी बनाई थी ऑलमोस्ट अराउंड 7-8 thousand मेंबर्स की। बहुत सारा, मतलब वन वन ईयर, 1.5 year मैंने उसको बिल्ड किया, ग्रो किया। एंड देन थोड़ा सा मार्केट बहुत फ्लक्चुएट होने लगा था, मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था, एंड मेरे को भी इतना मैं टाइम दे नहीं पा रहा था उस चीज़ को, क्योंकि साइड बाय साइड और मेरा कॉलेज भी चल रहा था एंड बहुत सारी चीज़ें थी। देन फिर उसको मेरे को शट डाउन करना पड़ा धीरे से। बट इट हाँ। वेंट वेल, इट वेंट वेल। ऐसा नहीं था कि मेरे को उसमें लॉस हुआ या मेरे को मज़ा नहीं आया। बहुत कुछ सीखा मैंने उससे, वेब थ्री के बारे में बहुत कुछ सीखा, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा, पैसे भी बनाए, एंड या इट वेंट वेल, रियली वेल।
तो मतलब बेसिकली अगर जैसे मैं एक वेब 3 कंपनी हूँ एंड इफ आई वांटेड टू, मैं एक प्रोडक्ट बिल्ड कर रहा हूँ एंड आई वांट पीपल टू जो भी है वो मेरे प्रोडक्ट को यूज करे, तो आप उनको एज अ या मार्केटिंग सर्विस तो प्रोवाइड कराते उनको थे। रीच आउट, उनके लिए ऑडियंस बिल्ड करना, उनके लिए कम्युनिटी बनाना, उनके लिए मार्केट करना, उनके प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना, सारी चीजें मैं प्रोवाइड करता हूँ। उनके प्रोजेक्ट को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे लिस्ट करवाना, सारी चीजें। तो ये सब आपने खुद फिगर आउट किया M&A के बाद? यस यस, यस यस यस, सारा मैंने खुद से फिगर आउट किया। दैट इज सो ग्रेट, मजा आ गया सुन के। तो फिर मतलब व्हाट मेड यू लेफ्ट दिस मेटा एंड मोर? बिकॉज बहुत चीजें थी यार, मेरा कॉलेज भी उस टाइम चल रहा था, मैं कॉलेज पे भी देख रहा था, क्योंकि फैमिली से भी थोड़ा था कि यार इंजीनियरिंग, आईआईटी तो हुआ नहीं, अब हम्म। नॉर्मल कॉलेज मिला है तो अब जॉब ही ले लो अच्छी, क्योंकि एक मिडिल हाँ। क्लास फैमिली में सबसे अच्छा ये नहीं, होता है ना कि हाँ यार हाँ हाँ जॉब ले लो, हाँ। जॉब मिल नहीं। जाए, जॉब सिक्योर हो जाए, देन सब सही है। तो वो सब भी चीजें थी, और भी बहुत कुछ चल रहा था माइंड में इधर उधर, तो फिर वो सब देख के लग रहा था कि अभी इसको ब्रेक देते हैं। बट मुझे नहीं पता था वो ब्रेक बंद ही हो जाएगा। मतलब मैंने ये सोच के नहीं किया था कि मैं इसको बंद ही कर दूंगा, बट ब्रेक काइंड ऑफ सोचा था, बट फिर वो क्लोज ही हो गया। हैपेंड। तो फिर आपने नेक्स्ट एक और टेंड अफेयर करके स्टार्ट किया था? पूरी रिसर्च करके आया हो लगता है आप। मैं पूरे रिसर्च करके आया हूँ, मैंने सारे बिजनेस मेरे को आपके समझ में है। ट्रेंड अफेयर, यार ट्रेंड अफेयर का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। यूट्यूब हम्म। पे फेसलेस यूट्यूब चैनल बहुत ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, मेरे को एक फेसलेस? सोर्स, अच्छा। फेसलेस यूट्यूब चैनल जहाँ पे आप सिर्फ इंफॉर्मेटिव कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो, कोई हाँ हाँ। फेस नहीं है, और वॉइस ओवर के थ्रू। राइट राइट। शुरू में क्या है, मैं बहुत शाय था, कैमरा शाय था, हाँ एंड मैं हाँ इतना हाँ। वो नहीं कर पाता था कैमरा के सामने। तो मेरे को लगा कि यार फेसलेस यूट्यूब चैनल करते हैं, एंड एक स्ट्रीम ओपन करना था बेसिकली मनी का, और यूट्यूब पे लग रहा था कि यार अभी बहुत हम्म। पोटेंशियल है और ग्रो कर रहा है यूट्यूब अच्छे से। तो वहां से फिर ट्रेंड अफेयर स्टार्ट किया था, जहाँ पे हम इंफॉर्मेटिव, वायरल और कंट्रोवर्शियल कंटेंट हम प्रोवाइड करते थे, यूएस में जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, काइली जेनर और ये सब वैसे। अच्छा अच्छा। तो उसके लिए ट्रेंड अफेयर स्टार्ट किया था, बट वो एक काइंड ऑफ फ्लॉप बोलूंगा, वो चला नहीं। और रीजन इसका ये भी है कि कोई भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है तो आपको पता है कि एटलीस्ट 2 से 3 साल देने पड़ेंगे, तब जाके ये आपको रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, हम्म। इंस्टाग्राम जैसे रील तो नहीं है कि हाँ कल हाँ कि वायरल हाँ। हो गई और छह हाँ महीने में आप 50 के पहुंच गए। यूट्यूब हाँ। टेक्स टाइम। वो राइट। टाइम हमने नहीं दिया, उतना एफर्ट्स हमने नहीं दिया, तो फिर ट्रेंड अफेयर इतना हुआ नहीं और चला नहीं। बट सीखा मैंने उससे बहुत कुछ। पेशेंस मेरा बहुत बड़ा उसके बाद, कि पेशेंसली कैसे चीज़ों को बिल्ड करते हैं, इंस्टेड ऑफ जल्दी रिजल्ट मिले वो सोच के। एंड किस तरह से टीम को मैनेज करते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल ऐसा काम है जहाँ पे आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो। एक टीम है हम्म। जो कंटेंट ढूंढ रही है, एक टीम है जो कंटेंट एडिट कर रही है, और एक टीम है उसको वॉइस ओवर देके उसको डाल रही है। तो वो सारा कैसे एग्जैक्टली। मैनेज होता है, क्या सारा राइट चीजें होता है, वो राइट। सब चीजें मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा। तो ये आप सब लोग मतलब जैसे YouTube पे कंटेंट बनाने के लिए देयर इज अ लॉट गोज इन बैक एंड, तो वो सब आप हाँ, खुद ही करते थे? पूरा नहीं मैंने एडिटिंग था? टीम टीम रखा था, टीम रखा था, अच्छा। वो टीम पूरा मैनेज करता था सारी चीजें। सो लाइक यू हायर्ड इंटर्न्स? या आई हैड इंटर्न्स, एक एडिटर था, एक कंटेंट राइटर था, एक रिसर्चर था। तो वो तीनों काम करते थे, मैं वीकली उनके साथ मीट्स लेता था अल्टरनेटिव डेज में, क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। और मतलब मेरे को एक ऑटोमेटिव स्ट्रीम ओपन करना था मनी का, जहाँ पे मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा हूँ, बट वो ग्रो हो रहा है और वहां से मेरे को पैसा आ रहा है। बट नाइस उस नाइस। चीज में मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर जब तक आप किसी भी चीज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि अगर आप सोचो कि मैं स्टार्टअप बिल्ड करूं, और आजकल बहुत चलता है ना स्मार्ट वर्क करके हाँ लोग जो हाँ हाँ बोलते हाँ हैं, कि हाँ। यार चालू कर लिया और उसको पूरा ऑटोमेट कर दो और चलने दो और अपने आप चल जाए, तो भाई ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा नहीं होता है। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आप कितना ही स्मार्ट वर्क कर लो, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाके ही चीजें बिल्ड होगी, नहीं तो नहीं। हम्म। क्योंकि एट द एंड यू आर द फाउंडर ना, यू नो कि आपको क्या चाहिए, आपने जो विजन, हाँ। ड्रीम देखा है उसको आप ही राइट पहुंचा सकते हो। आप हायर कर लोगे किसी भी बंदे को, बट वो वही करेगा ना यार, क्योंकि उसको हायर किया आपने, वो उस लेवल पे ही सोचेगा। अगर राइट आपको राइट वहां राइट। पहुंचना है तो आपको ही उसको वहां तक लेके जाना पड़ेगा, तब जाके वो चीज आएगी। वो मेरे से गलती हुई। मैंने सोचा कि पूरा ऑटोमेट करके उसको चलाऊंगा, बट वो एट द एंड हुआ नहीं। बट हाँ, सीखने को बहुत कुछ मिला, तो ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है इसका। नहीं सही है, एक्सप्लोर किया। मतलब ये सब आपका ड्यूरिंग द कॉलेज ही चल रहा था, तो इतना यस यस, हाँ ड्यूरिंग द कॉलेज। वो नहीं था। ओके। राइट। नाइस।
एंड देन फिर आपने उसके बाद एक एक्सपेल स्टार्ट किया। एक्सपेले। एक्सपेले। या एक्सपेले। देन फिर शूट अप थोड़ा अच्छे से। अभी एक्सपेले इज गोइंग वेल। तो एक्सप्ले में आप अभी भी कंटिन्यू हो? एक्सपेले। हाँ हाँ हाँ, एक्सपेले इज एक्सपेले, राइट सॉरी। नाउ। एक्सपेले इज गोइंग ऑन राइट नाउ यार। एक फाउंडर एक कंपनी क्यों चलाएगा, वो तो चला सकता है ना जितने चाहे। एक एग्जैक्टली, एम्प्लॉय दैट इज द कर सकता है बेनिफिट ऑफ 3 दैट जगह, इज द बेनिफिट बट ऑफ अ फाउंडर तो फाउंडर। कर ही सकता है ना 3 जगह काम। नहीं, डेफिनेटली डेफिनेटली हाँ, ये तो तो होना एक्सपेले ही चाहिए। एक्सपेले इज वर्किंग वेल। एक्सपेले इज वर्किंग फ्रॉम पास्ट 1.5 मोर देन 1.5 ईयर। अप्रैल 2022 को हमने एक्सपेले स्टार्ट किया था विद आनंदू एंड वन मोर पार्टनर दिवेश। उससे ओके। मैं वाया फ्रेंड मिला था हाँ लॉकडाउन के हाँ। टाइम पे फॉर सम वीडियो एडिटिंग काइंड ऑफ स्टफ। एंड देन वहां से अभी हमने फिर लास्ट ईयर अप्रैल 2022 में मैंने आनंदू एंड दिवेश ने एक्सपेले स्टार्ट किया। एक्सपेले का बेसिकली क्या एक्सपेले बिजनेस मॉडल है? एक्सपेले बेसिकली वेब थ्री ही हमने स्टार्ट किया था। सो मुझे वेब थ्री का पूरा वो था, नॉलेज था कैसे हम्म मार्केटिंग होती है, कैसे कंपनीज वर्क कर रही हैं सारा। क्या हुआ 2022 में अगेन बुल रन आया वेब थ्री का, जब हम्म। एलॉन मस्क टू ट्वीटेड अबाउट डॉज कॉइन एंड स्टफ, तो वहां राइट। से वेब थ्री का बूम आया। तो उस टाइम मुझे लगा कि यार मार्केटिंग तो ठीक है, बहुत प्लेयर आ चुके थे उस टाइम तक, बट टेक एक ऐसी चीज है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हम्म जो जिसके अराउंड बहुत कम लोग हैं। और एज अ प्रायर एक्सपीरियंस इन वेब थ्री मुझे थोड़ा बेसिक समझता था कि हम्म। कैसे होता है क्या। तो वी डिस्कस्ड मी एंड नंदू एंड देवेश कि यार अपन इस चीज को चालू करते हैं। बेसिकली एक्सपेले का मोटो क्या होता है वेब थ्री में, जब नया नया कोई भी चीज आती है तो बहुत सारे रग्स और बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, लोग बहुत सारा पैसा निकाल जाते हैं। तो वे एक्सपेले मींस टू एक्सपेल रग्स फ्रॉम वेब थ्री स्पेस, वहां से ओके। एक्सपेले का नाम आया। तो तो वहां मैं तो समझ ही नहीं पाया, एक बार फिर से बताओगे? बेसिकली एक्सपेले मींस टू एक्सपेल, मतलब हाँ। क्रिप्टो और वेब थ्री स्पेस से रग्स को बाहर निकालना, मतलब एक्सपेल करना, तो वहां से फिर एक्सपेले आया। ओके। तो इसमें मतलब हाँ आपका लाइक इसमें आपका अर्निंग अभी भी हो ही रहा है, ऑफ कोर्स ये चल रहा है, तो इसमें हाँ आपका हाँ। बिजनेस मॉडल है प्रॉपर? यस 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 सारा। एक्सपेले इज प्रॉपर वेल established कंपनी राइट नाउ। ओके। सो एंड दिस एक्सपेले इज कंपनी नॉट इज जस्ट अ स्टार्टअप, बट हम्म। एक प्रॉपर लीगल कंपनी एक्सपेले। ओके, एंड दिस इज इन यूएई? या इट्स बेस्ड इन यूएई, इट्स बेस्ड इन दुबई। एक्सपेले हाँ। हमने अप्रैल 2022 में स्टार्ट किया था एंड जनवरी एंड में हम दुबई आए थे। फेब फर्स्ट या सेकंड वीक में हमने इनकॉर्पोरेट करा लिया था दुबई में डायरेक्ट। इंडिया में हमने नहीं ओके। करा है, डायरेक्ट हमने दुबई में इनकॉर्पोरेट करा है। सो फाउंडिंग टीम एंड एक्सपेले का सारा जो हेडक्वार्टर है सब कुछ है वो दुबई में। एंड हाउ मेनी टीम मेंबर यू हैव इन एक्सपेले? राइट नाउ अगर कंप्लीट टीम मेंबर बोलो अराउंड 20-25 टीम मेंबर्स आते हैं एंड इंक्लूडिंग यू गाइस हैव बिजनेस। ऑल, एंड आपने ही सबको मतलब लाइक हायर किया है? यस यस यस, पूरा पूरा एक्सपेल इज कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप बिजनेस। एक इट्स रुपए भी नॉट फंड फन? नहीं लिया हमने कहीं से, कोई फंडेड नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारा हम खुद ही अपने उससे रन किया है और अभी लेवल पे जो है वो हमने खुद ही किया है। एक रुपए भी हमने ना अपने पेरेंट्स से लिया है, ना आपने किसी वीसी से लिया है, ना हमने कभी एंजल राउंड किया है, कुछ भी नहीं किया। कंप्लीट बूटस्ट्रैप एक्सपेल है जो हमने अपने कमाए हुए पैसे से ग्रो किया। नॉट इवन आस्किंग फ्रॉम पेरेंट्स की एक रुपए चाहिए या कुछ। राइट राइट, नाइस, दैट इज सो ग्रेट। ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है। तो मतलब लोग हमेशा फंडिंग ये ढूंढते रहते हैं, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक मेजर क्वेश्चन ये होता है कि फंडिंग कहाँ से मिलेगी, एंड दैट इज सो फंडिंग। गुड कि लाइक यू गाइस हैव ओन फिगर्ड इट आउट विद या whatever you have done in the आई past आई 2.5 years. बिलीव, मेरा पर्सनल बिलीव है कि यार अगर आप कोई भी बिजनेस को अपने दम पे कर सकते हो बिना फंडिंग लिए बिना कुछ के, तो एक वो बहुत अच्छा वे होता है टू अचीव योर गोल, अचीव योर ड्रीम। फंडिंग आने के बाद ठीक है चीजें बहुत इजी हो जाती है, बट वहां पे फिर आपको बहुत अलग अलग लोगों के साथ काम करना पड़ता है और जरूरी नहीं है कि उनका माइंडसेट और आपका माइंडसेट मैच करे वही गोल को अचीव करने के लिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ, ये एक वो होता एक है। पॉइंट है। तो वो सारी हम्म। चीजों को देख के हमको लगता है कि यार, और जितना बूटस्ट्रैप बिजनेस अच्छा है क्योंकि आपको रात में सुकून की नींद आएगी। राइट 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 वो राइट एक राइट। मुझे बहुत लगता है कि मुझे, मैं एट द एंड मैं कर रहा हूँ बहुत सारे बिजनेस रन कर रहा हूँ सब चीजें, लेकिन अगर मुझे हाँ, सुकून की नींद नहीं आ रही है तो मैं सब छोड़ दूँ। मेरे को सही सुकून की नींद बहुत प्रायोरिटी है, वो तो चाहिए ही में। चाहिए। ऑफ कोर्स होना भी चाहिए वो। मतलब फिर वीसी का हाँ, प्रेशर है, मतलब इट्स अगेन फील लाइक फीलिंग बहुत चीजें हो वो, जाती हैं। हाँ हाँ, फिर उसको वो मैं जॉब गलत वाली भी फील नहीं आता है। बोलूंगा, गलत भी नहीं बोलूंगा। अगर आप प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो और आपके पास जेन्युइनली फंड नहीं है तो वो बहुत अच्छी चीज है, सब कुछ है। हम्म। बट एक्सपेले इज अ सर्विस बेस्ड कंपनी जहाँ पे आई डोंट थिंक हमको फंडिंग की रिक्वायरमेंट थी क्योंकि हमारा प्रोडक्ट नहीं है।
हम्म। सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम, सारी चीजें, आईटी सॉल्यूशंस, आईटी डेवलपमेंट, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं हम एक्सपेले के अंदर। सो बेसिकली एक्सपेले। टेल कंपनी जहाँ पे मेरा आई वांटेड टू ऑटोमाइज द प्रोसेस बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन। तो मेरे को वहां ओके। से ब्लॉकचेन का नॉलेज आया जब मैंने वो प्रोजेक्ट मुझे बिल्ड करना था, लाइक हाउ ब्लॉकचेन हैपेंस एंड उसको हम एंड हाउ इजी, आई वुड नॉट से इजी, हाउ इट इज लाइक द मोस्ट सिक्योर्ड वे ऑफ डूइंग एनी ट्रांजेक्शन और रिकॉर्डिंग डेटा। तो राइट। आपका जो सर्विस इंडस्ट्री है, मतलब आप जिन क्लाइंट्स को कैटर करते हो, तो वो मोस्टली आपके जो क्लाइंट्स होते हैं वो कौन से इंडस्ट्रीज के होते हैं? लाइक आपका जो ब्लॉकचेन का ये पूरा सेटअप है एक्सपेले का, तो आप कौन से कंपनीज को टारगेट करते हो एंड हाउ यू रीच आउट टू दोज कंपनीज? सो मैं बिजनेस मॉडल एक बार समझाता हूँ। एक्सपेले में हम, हाँ। हमारा जो 80% जो भी बिजनेस होता है वो ब्लॉकचेन के अराउंड होता है, ब्लॉकचेन राइट। टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है, क्योंकि हमारा कोर वही है। हम्म। मोबाइल ऐप एंड वेब डेवलपमेंट हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया, बट हम हम्म। उस पर अभी ग्रो कर रहे हैं। 20%, 18% हमारा बिजनेस उससे आता है। बट मेजर जो चंक है वो ब्लॉकचेन वेब 3 में ही है, जिसमें हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है हम्म। जिसके अराउंड सारी चीजें इवॉल्व करती हैं, वो हम हम्म। बनाते हैं। स्मार्ट हम्म। कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग हम करते हैं, हमारे पास इन हम्म। हाउस डेवलपर्स है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट करते हैं। ब्लॉकचेन के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक डैप डेवलपमेंट, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस, राइट। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, एनएफटी मार्केट प्लेस, इसके हम्म। अलावा लॉन्च पैड्स, इसके अलावा आपका क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म्स हो गए, लॉटरी प्लेटफॉर्म्स या फिर बेटिंग प्लेटफॉर्म, ये सारी चीजें। तो सारा चीजें जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का अराउंड होता है, सारा हम डेवलप करके देते हैं। तो तो ये मेजर जो अगर चंक है, मेजर जो चंक है कंटिन्यू। हमारा वो 80% वेब 3 ही बेस्ड है, जिसमें हम वेब 3 कंपनीज, अब इसमें दोनों आ जाता है, B2B भी आता है, B2C भी आता है। सपोज देयर इज राइट। वन स्टार्टअप जिसको प्रोडक्ट बिल्ड करना है, जिसने फंडिंग सिक्योर किया, पर उसके पास टीम नहीं है, वो चाहता है कि वो आउटसोर्स करे, वो हम्म। मार्केटिंग खुद कर सकते हैं बट उसको आउटसोर्स करना है। तो वहां राइट। पे हम आ जाते हैं कि जहाँ पे हम आपको पूरा आउटसोर्स, आप हमको कर दो, हम आपको पूरा प्रोडक्ट से लेके सारी चीजें बिल्डअप करके दे देंगे। तो ये B2B हो गया। राइट। देयर आर इंडिविजुअल्स प्लेयर्स जिनका खुद का वो प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, खुद के प्रोडक्ट निकालते हैं। देयर इज वन स्पेस इन वेब 3, डिसेंट्रलाइज स्पेस, जहाँ पे ऑन अ डेली बेसिस बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स निकालते हैं, मीम कॉइन्स निकालते हैं, डॉज कॉइन हो गया, हम्म। ऐसे बहुत सारे मीम कॉइन्स हैं जो इंडिविजुअल प्लेयर निकालते हैं। तो उनको राइट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग चाहिए होता है, उनको वेबसाइट, वेब 3 इंटीग्रेटेड वेबसाइट चाहिए होता है, उनको मार्केट प्लेस चाहिए होता है। तो ये B2C हो गया। तो हमारा दोनों बिजनेस मॉडल रन करते हैं, जिसमें B2B नाइस। भी है प्लस B2C भी है, प्लस समटाइम्स वाइट लेबल वर्क ऑल्सो करते हैं। सम देयर इज वन कंपनी जो हम्म। सेम प्रोवाइड करती है, बट उनकी टीम अभी फ्री नहीं है, वो राइट। बिजी है प्रोडक्ट, तो उनके लिए हम वाइट लेबल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते All right. And as far as I know, when I wanted to develop this blockchain project, इसका जो पर आवर के हिसाब से कॉस्टिंग होती है ना, कि लाइक जो हैं। मेरा जो टीम है वो 1 घंटे राइट। के हिसाब से ब्लॉकचेन पे काम करेगा, तो उसका बहुत ही एक हाई अमाउंट उन्होंने मेरे हाई को कोट अमाउंट किया है। था। राइट। राइट। क्योंकि इसमें वो आई थिंक माइनिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सी डिपेंड ब्लॉकचेन। करता है कि आपको प्रोडक्ट क्या बनवाना है। ब्लॉकचेन के अंदर ना बहुत सारी चीजें आती हैं एंड बहुत कुछ है, ब्लॉकचेन बहुत वास्ट इंडस्ट्री है। तो डिपेंड करता है राइट। कि आपको बनवाना क्या है। सपोज आपको सिर्फ नॉर्मल बेसिक ERC20 टोकन जो होता है, इथीरियम हाँ। का जो टोकन है, हम्म। उसको अगर आपको सिर्फ ऑडिट करवाना है तो वो ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन में हो जाता है। तो उसके लिए हम फिर डेली आवर चार्ज नहीं करते, उसके लिए स्पेसिफिक प्राइस है, हम्म। $500, $700, इतना आपको लगेगा। इसमें आपका 4 से 5 दिन 6 दिन में हम आपका पूरा ऑडिट करके प्रोवाइड कर देंगे। देयर इज राइट। सम बिग थिंग कि जहाँ पे हमको पता है कि 8 से 9 महीने लगने वाले हैं उसको बनाने में, उसको टेस्ट करने में, उसके बग्स सॉल्व करने में, तब फिर वो आवरली रेट आ जाता है, क्योंकि फिर अपने को पता नहीं है कि वो 6 महीने में हम्म। होगा कि 8 महीने में होगा, फिर क्लाइंट क्या चेंजेस करवा रहा है, क्या सारा चीज़ है। वहां अगर मैंने फिक्स कॉस्ट बता दिया, अगर वो प्रोजेक्ट 6 महीने की जगह 12 महीने चल गया, तो फिर मेरा लॉस है ना वहाँ पे। मेरा तो एग्जैक्टली। डेवलपर 12 महीने के लिए सेट हम्म। हो गया वहां पे। तो वहां राइट। पे फिर आवरली कॉस्ट आ गया। अगर कोई प्रोडक्ट बनाने, सपोज करो मेरे को डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाना है जो कि बेसिक सा लॉटरी प्लेटफॉर्म है, वो हम्म। ऑलमोस्ट अराउंड 7 से 8 दिन में बन जाता है। तो फिर मैं वहां पे फिक्स कॉस्ट बताता हूँ कि यार $3,000 या $4,000 लगेगा, 1 हफ्ते का काम है, हम बना के दे देंगे आपको। फिर वो 1 हफ्ते का चलो 10 दिन में होता है, तो फिर हम बेयर कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। बट 6 8 महीने, 12 महीने, 2 साल का काम होता है, तब फिर वो आवरली चार्ज आ जाता है। राइट। 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 एंड दैट इज मोर गुड वे ऑफ डूइंग इट, क्योंकि हाँ एग्जैक्ट। ऑब्वियस, हाँ। फिर लॉस हो हम्म। जाएगा ना आपको। 6 महीने हम्म। का आप अगर 12 महीने में हो रहा है तो लॉस वाला हो जाएगा। राइट। तो आपकी ये जो टीम है, इसमें जो ब्लॉकचेन डेवलपर्स हैं, वो इन हाउस ऑफिस में यूएई में है और इट्स अ रिमोट वर्क? नहीं, सब रिमोट वर्क ही करते हैं। ऑफिस में दुबई में सिर्फ फाउंडिंग टीम रहती है, बाकी हम्म। सारा जो भी है सब इन हाउस
काम करते हैं, लेकिन अपने अपने घर से काम करते हैं। डेवलपर्स हो गया, बीडी टीम हो गया, एचआर हो गया, सारी चीजें सब अपने अपने घर से काम करते हैं रिमोटली। उनका जो जितने भी एसेट्स वगैरह प्रोवाइड कराने होते हैं, लाइक लाइक उनको लैपटॉप्स चाहिए, एंड देन यू हैव, सो लाइक यू गाइस प्रोवाइड ऑल ऑफ दीज यार अभी तो हम इतने बड़े नहीं हुए हैं कि हम नहीं लैपटॉप वगैरह भी मतलब प्रोवाइड कर दें। मतलब होपफुली एक दिन आएगा जब हम ऑफ इतने बड़े कोर्स। हो जाएंगे। अभी यार 1.5 year old कंपनी भी यार, मैं ये नहीं एंड बोलूंगा कि हम बहुत हाँ, अंडर वो है, बट वी हैव डन वेल अभी तक इतने टाइम में, और कंप्लीट बूटस्ट्रैप है हम। हमारे पास पीछे से कोई दे नहीं रहा है कि भाई तू तो खर्च करता जा, हम बैठे हैं। तो हमको राइट, बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि कहाँ हम एग्जैक्टली। इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ नहीं करें, मनी का फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है, रेवेन्यू सही जा रहा है नहीं जा रहा है, तो वो सारी चीजें हमको देखनी पड़ती ओके, नाइस नाइस। तो मतलब आप फाइनेंसेस वगैरह भी खुद ही मैनेज करते हो सारे अपने? है। सारा सारा सारा। You have done a great job. I mean, like, I'm getting inspired by sitting in front of you right here. I don't know what will happen to the audience. ओके, सो ये एक्सपेले वाला आपका अभी भी चल रहा है, एंड देन हाँ, एक्सपेले नाउ इज ये, गोइंग हाँ। गुड। मैं अभी दुबई में ही हूँ, एक्सपेले ही हम्म। रन हो रहा है, सब चीजें चल रही हैं वेरी वेल, प्रिटी गुड। मार्केट सो डाउन है अभी, बट वी आर ट्राइंग की कोप अप करें थोड़ा एंड ग्रो करें। सो ये जो जितने भी रिमोट रिमोट एम्प्लॉयज हैं, आर दे ऑन अ फ्रीलांस बेसिस प्रोजेक्ट, और लाइक दे नो आर नो इन नो अ? नो नो नो, परमानेंट एम्प्लॉयज, ऑल आर परमानेंट एम्प्लॉयज। सारा परमानेंट ओके, काम करते हैं, बट हमारा ऐसा कुछ स्पेसिफिक वर्किंग आवर नहीं है कि ऑफ 9 से 5 बैठना कोर्स। ही बैठना है। हम वही राइट, रूल फॉलो करते हैं, आपका काम हो गया आज का, आपने टास्क कर हाँ, दिया, फ्री टू जो करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि नाइस आपको बारह नाइस। घंटे 6 घंटे बैठने, बट टास्क हो जाना चाहिए, जो आपको प्रोवाइड है, जो काम है वो हो जाना चाहिए। क्योंकि हमारे बहुत सारे डेवलपर्स हैं, कोई रात को काम करता है, कोई सब डेवलपर का अपने अपने रूटीन के हिसाब से होता है कि मेरे को इस माइंडसेट में इतने बजे काम करना है। तो आप अपने हिसाब से करो, बस क्लाइंट की डेडलाइन मीट होनी चाहिए, काम डिलीवर होना चाहिए, एंड एट द एंड आप कुछ भी करो, वी डोंट चिल ऐसा। Got it. Nice. So, so like how the gossip started about the gossip circle now? सो गॉसिप सर्कल स्टार्टेड a month ago, or I can Okay. say not a month ago, 20, 15, 20 days ago. So अच्छा। from so long, I was thinking कि I wanted to do something in a food sector. हाँ हाँ। बहुत टाइम से था। मी एंड मंथन वी वर डिस्कसिंग दिस फ्रॉम पास्ट सो लॉन्ग कि कुछ तो करते हैं फूड सेक्टर में, कुछ को तो करते हैं। देन हमको एक गैप दिखा जहाँ पे कॉलेजेस में जो कैंटीन्स होते हैं हम्म। वहाँ पे फूड अच्छा नहीं मिलता। Oh मैक्सिमम my लोगों के God. Oh कॉलेज में my नहीं God. मिलता। That is such a नहीं, pain point. हाँ, वो बहुत हमने भी फेस किया, सबने फेस किया, आपने भी फेस किया, Exactly. सबने फेस Exactly. किया है। हाँ। कॉलेज कैंटीन में कभी अच्छा खाना मिल ही नहीं सकता। Yes. तो Yes. Yes. हमको Totally शुरू में agree. लगा कि यार इस चीज को अगर अपन कन्वर्ट करें और हम एक हम्म। फूड चेन खोलें ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया, हर कॉलेज में, जहाँ हम्म। पे हम अच्छे लेवल का फूड, सारी चीजें अच्छे लेवल की विद अफोर्डेबल प्राइस अगर हम प्रोवाइड कर पाए। हम्म। ये एक स्टार्ट आइडिया था, इससे भी हमने पिवट लिया है। मतलब इससे एकदम इंस्पायर मत हो आप लोग के यही हम करने वाले, गॉसिप सर्कल ये नहीं है। एक डिस्क्लेमर दे अच्छा। रहा हूँ, ये नहीं है। तो ये ओके। ऐसे आइडिया आया था कि इस चीज को कर सकते हैं। देन हमने बहुत सारी रिसर्च करी, बहुत कुछ फिगर आउट किया, एंड अभी हम इतने बड़े नहीं हुए हैं। आई एम जस्ट 23 ओनली। ओह। मतलब इतना भी नहीं है कि 30-35 जहाँ पे हमारा ह्यूज नेटवर्क है, पॉलिटिकल हम्म। कनेक्शंस है, सब कुछ है। क्योंकि कॉलेजेस में अगर आपको कैंटीन खोलना है तो वहाँ पे वो होता है, हाँ, क्या काफी बोलते हैं, सारे बहुत कुछ प्रोसेसेस हैं। है। हाँ। पॉलिटिकल कनेक्शंस होना चाहिए, इसके अलावा बोली हाँ। वगैरह होती है, वहाँ पे ऑक्शंस वगैरह होता है कि कौन हम्म। कितना ज्यादा बिड कर रहा है, उस हिसाब से फिर नेटवर्किंग, राइट। वो सब चीजें होता है। तो अभी हम उस लेवल पे नहीं है कि हम वो सारी चीजें एक साथ सॉल्व कर पाए उतने हम्म। बड़े लेवल पे। ऐसा नहीं है कि हमने रिसर्च किया पूरा, हमने बहुत सारे कॉलेजेस में गए, बहुत सारे लोगों से बात करी, बहुत सारे कॉलेजेस में रिसर्च करी, कॉलेज के हम्म। फैकल्टीज से बात की। बट एट द हमको लगा कि ये इंडस्ट्री में कोई अभी बड़ा प्लेयर इसलिए ही नहीं आया है क्योंकि ये इंडस्ट्री में आना और इस चीज में क्रैक करना एक बहुत बड़ी चीज है। हम्म। प्लस इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। राइट राइट। कि अगर आप एग्जैक्टली। किसी बड़ा हम्म। इन्वेस्टर तो फिर आप पॉलिटिकली भी कर पाओगे, आप हम्म। नेटवर्किंग के थ्रू सर कर पाओगे, अगर आपके पास बैकग्राउंड है, आपके पास अच्छा खासा पैसा है। एंड मैं हम्म। हमेशा वो माइंडसेट चलता हूँ कि मैं अपने जेब से पैसे लगा के जितना बना सकूं वो बेस्ट है, मुझे फंडिंग बेस्ट चाहिए है। ही नहीं। फिर चाहे नाइस। वो प्रोडक्ट है चाहे वो। तो फिर देन हमने वहां से पिवट लिया। देन वहां से हमको लगा एक और मार्केट है इंडिया में जो बहुत बड़ा मार्केट है, अराउंड 6,000 करोड़ का मार्केट है, जो बहुत अनहाइजीन और बहुत डिसरप्ट है। इफ यू वांट गैस, जो हम सबको पसंद है, स्पेशली लड़कियों को तो बहुत स्ट्रीट पसंद है। फूड।
स्ट्रीट फूड बोलेंगे या फिर पानी पूरी भी हम बोल पानी सकते हैं, पूरी। हाँ। जो अनहाइजीनिक है और बहुत डिसरप्टेड है। उसके लिए कोई बड़ा एक वैसा हम्म प्लेयर नहीं है जो उस प्राइस पॉइंट पे एकदम हाइजीन के साथ सब चीजें हम्म प्रोवाइड करे। हम्म तो हम्म, फ्रॉम देयर दिस नेम केम गॉसिप प्लस सर्कल, मतलब सर्कल मींस पानीपुरी जो पानी का। वो हाँ राउंड उसमें होता है, एंड हाँ वहां पे हम बातें करते हैं, लोगों से गॉसिप करते हैं, वो सारा चीज, तो वहां से गॉसिप सर्कल स्टार्टेड। तो बेसिकली गॉसिप सर्कल इज अ फूड चेन जो इंडियन स्ट्रीट फूड प्रोवाइड करेगी, नॉट जस्ट पानीपुरी, बट हाँ हमारा जो स्पेशलाइजेशन होगा वो पानीपुरी में रहेगा, जो हम हाइजीन के साथ हाई लेवल पानीपुरी प्रोवाइड करेंगे आपको विद अफोर्डेबल प्राइस। बट और भी सब आपको एसक्यूज मिलेंगे जहाँ पे और भी इंडियन स्ट्रीट फूड्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं विद प्रॉपर हाइजीन। राइट राइट राइट। और पानीपुरी में अभी एक चीज ये है कि अगर आप एरिया में जा रहे हो तो भी होता है, वेस्ट बंगाल की पानीपुरी अलग है। हम्म। हम नाम कैसे बोलते हैं, वेस्ट बंगाल में पुचका बोलते हैं, मतलब कुछ का मुझे बोलते हैं नहीं पता हाँ। पुचका बोलते हैं, हाँ बट मैं बस कोट कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ हाँ में गुपचुप बोलते हैं, मेरे हाँ एमपी में फुल्की बोलते हैं, महाराष्ट्र साइड पानीपुरी बोलते हैं। तो व्हाट हाँ। अवर मोटो इज, एक स्टॉल जो हमारा रहेगा उस पे आपको वेस्ट बंगाल की भी पानीपुरी मिलेगी, वहां के टेस्ट की, ओह। महाराष्ट्र का गोलगप्पा, महाराष्ट्र का आपको पानीपुरी मिलेगा, वेस्ट बंगाल का पुचका मिलेगा, गोलगप्पा मिलेगा मुंबई का आपको, एमपी का आपको फुल्की भी मिलेगा, राजस्थान में अगर पानी बताशे बोलते तो पानी बताशे भी मिलेगा, सेम उस टेस्ट में, सेम उस वैरायटी में जहां ऑथेंटिक मिलता। तो इस I can totally see this, actually shooting up to sky heights in no time. और पानी पूरी बहुत बड़ा मार्केट है। बट अब Exactly. कोविड के बाद हम सब हाइजीन के साइड जा रहे हैं हर हम्म। कोई। स्ट्रीट फूड में भी बहुत हद तक हाइजीन आया, लेकिन पानी पूरी एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे हाइजीन आया नहीं, और एक वो टैग भी बना कि जब तक यार उसने उसका पसीना नहीं गिराया तो फिर टेस्ट मत जाने। Right, हम वो right, right. टेस्ट आपको ला के देंगे विदाउट इवन अ गाय टचिंग पानी पूरी। वो हम्म। बंदा उस पानी पूरी को टच भी नहीं करेगा और आपको वही पानी पूरी मिलेगी वही टेस्ट के साथ। बंदा टच नहीं करेगा मतलब ऑब्वियसली उसने ग्लव्स पहने होंगे ना मतलब, अब या फिर हमारा मशीन। कुछ थोड़ा कौन नहीं, मशीन नहीं रहेगा, ह्यूमन वर्क करेगा, लेकिन ऐसे वर्क हाँ। करेगा, मतलब हाँ ग्लव्स पहन लिया, बट हम इतना हम्म। उसको ऑटोमेट कर देंगे कि पानी आप खुद भर लो या अपने हाथ से ले लो, भैया पानी में ओह। डुबाएंगे ही नहीं। तो अच्छा। वहां पे वो जो मेन हाइजीन फैक्टर है हमने वो ही काट दिया। ऑल राइट ऑल राइट। उस वे बहुत में बढ़िया हाँ। फिर हम्म है। पर फर्स्ट में देखो हमने फिर सोचा कि हम इसका आउटलेट डालते, मतलब ये तो फिर वो वाली बात हो गई जो अभी पता ही नहीं है किसी को। मतलब इस चीज में ये है कि बहुत कुछ अभी है, गॉसिप सर्कल अभी स्टार्ट ही किया हम्म है, हम्म आउटलेट्स आने वाले हैं, स्ट्रीट में स्टॉल्स भी आने वाले हैं, ऐसे स्टॉल्स आने वाले हैं जो आपने अभी तक देखे नहीं है मार्केट में, ये मैं बोल सकता ओके। हूँ। गॉसिप अच्छा। सर्कल इज गोना बी वेरी बिग थिंग इन नेक्स्ट 1 ईयर। इंडिया में हम अच्छे लेवल पे पानीपुरी का मार्केट डिस्टर्ब करने वाले हैं, ये मैं बोल सकता हूँ अभी से। जिस लेवल पे हमने प्लान किया, जिस लेवल पे हम सोच के चल रहे हैं, जिस लेवल पे हमारा स्ट्रक्चर है कि हमको कैसा आउटलेट डालना है, या फिर आउटलेट हम नहीं भी डालें, हो सकता है हम आउटलेट ना डालें, हम सीधा स्टॉल लगाएं, बट ऐसा स्टॉल लगाएंगे कि लोग खाए नहीं खाए लेकिन देखने जरूर आएंगे कि क्या है ये। हम्म। क्योंकि नाइस वैसा नाइस। अभी तक इंडिया में आई डोंट थिंक मैंने एक भी वैसा स्टॉल नहीं देखा, वैसा कुछ देखा ही नहीं इंडिया में अब तक, जिस लेवल तो पे हम इस आपने मार्केट को डिस्टर्ब करने वाले हैं। इंडिया के बाहर देखा आपने किसी कंट्री में, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से आया? नहीं यार, सो लाइक इट्स योर इंस्पिरेशन ओन भी, आइडिया थॉट। हाँ इट्स हमारा खुद का ही है, मी एंड मंथन, हम डेली ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, डेली डिस्कस करते हैं कैसे करना है। सी हम इस चीज को ना वैसा नहीं करना चाहते कि यार जल्दबाजी में सिर्फ हाइजीन ले आए और कर दिया। हम चाह रहे हैं इनोवेशन, हम चाह रहे हैं कुछ डिफरेंट। अगर हम पानीपुरी में हाइजीन ला रहे हैं तो हम ऐसी ऐसी चीजें भी लाए कि सामने वाले को वो मिल जाए, यूएसपी मिल जाए कि यार यहाँ चलो इसके यहाँ खाना है। हम्म जेन जी प्लस हाइजीन प्लस डिफरेंट वेराइटी प्लस कल्चर प्लस आपको बहुत सारा चीजें विद अफोर्डेबल और सेम प्राइस जो स्ट्रीट में पानीपुरी मिल रही है, सब एक प्लेस पे। दैट इज गोइंग टू बी अ ब्लास्ट। एंड इसमें और भी बहुत सारे मेजर हमारे बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं जो कि लोग, या मुझे नहीं लगता कोई एक्सपेक्ट करेगा किसी पानीपुरी स्टॉल से या कुछ वैसा, बट वो आने वाले टाइम में पता चलेगा जब चीजें आएंगी। इट्स तो गोना बी अभी ये सरप्राइज। अभी जैसे आपने, आई गेस इट्स फाउंडेड इन कोटा राइट, एज ऑफ नाउ। हाँ या हमारा अभी के लिए मोटो वही है कि हम फर्स्ट आउटलेट कोटा ही करेंगे, क्योंकि मंथन लिव्स कोटा हम्म ओनली, उसका वहाँ पे हम्म है, नेटवर्क है, लोग जानते हैं, सब हम्म कुछ है। तो स्टार्ट के लिए कोटा ही हम प्लान कर रहे हैं, बट विल सी कैसे होता है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोटा ही रहेगा, पूरे ग्लो इंडिया में हमको पूरे इंडिया में लेके जाना है इसको। अभी केरला में, केरला का स्ट्रीट फूड अपने को नहीं पता क्या होता है, साउथ हम्म साइड बोलो तो,
बट राइट। साउथ में भी अब पानी पूरी जाएगी नॉर्थ के, और साउथ का भी स्ट्रीट फूड अब नॉर्थ में आएगा, वो हम लेके आएंगे। दैट इज कल्चर सो प्रमोट ग्रेट। करना है। इंडिया हम बोलते हैं तो इंडिया में फिर कैटेगरी क्यों है कि नॉर्थ अलग, ईस्ट अलग, हम्म। साउथ अलग, ये अलग, सबको एक साथ लेके चलते हैं ना। तो वो एक बहुत बड़ा, वो भी एक रीजन है जहाँ पे हम लेके जाने वाले हैं। पानी पूरी एक जस्ट स्टार्ट है। राइट राइट। हाँ मतलब हाँ, पानी पूरी से काफी लोग कनेक्ट कर पाएंगे एंड इजी फॉर राइट यू टू राइट कन्विंस राइट। कस्टमर। वो यस यस यस। प्राइस पॉइंट भी इतना ज्यादा नहीं जाएगा एंड मोर पीपल वांट टू हाँ, कम एंड जॉइन। यस यस दैट इज यस, सच उस अ लेवल पे ह्यूज पूरा। कॉन्सेप्ट। यस यस यस, दैट्स व्हाट गॉसिप ग्रेट सर्कल इज। ग्रेट ग्रेट। ऑलरेडी आई थिंक दिस इज द यहाँ से गॉसिप होना स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद से पीपल वी गॉट टू नो अबाउट दिस। या मोस्ट प्रोबेबली इन नेक्स्ट 2 मंथ फर्स्ट आउटलेट या फर्स्ट स्टॉल या पता नहीं क्या मिल जाए, होपफुली इन नेक्स्ट टू एंड मंथ देन मतलब हाँ। न्यू ईयर के आसपास हो सकता है हम लॉन्च कर दें अच्छे बड़े नाइस। लेवल। ऑल राइट आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू। अगर लेट्स सी कहाँ पे होता हूँ मैं और कहाँ पे पहला आउटलेट खुलता है। नहीं नहीं, फॉर श्योर फॉर श्योर। प्लस इसमें बताओ बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं, मतलब बहुत लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे ऐसी ऐसी चीजें हम इसके अंदर ला रहे हैं, कंटेंट वाइज, मतलब स्ट्रक्चर वाइज, और ऐसी ऐसी चीजें हम वहां पे ऑन स्पॉट करने वाले हैं उस जगह पे, उस चीजों में भी, और बहुत कुछ होने वाला है इस चीज में गॉसिप सर्कल के अंदर। एक मैंने एक नाइस। जस्ट आपको 10% बताया कि गॉसिप सर्कल क्या है, अभी 90% चीजें बाकी है जो वहां पे होने वाली हैं बहुत बड़े लेवल आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मजा आ रहा है फॉर सुनकर के ही श्योर। मतलब पानी पूरी का टेस्ट आ रहा फॉर श्योर है। फॉर श्योर। नाइस। तो मतलब इसमें ये तो फ्रेंचाइज मॉडल पे भी फिर यू कैन इजीली एक्सपेंड दिस ऑन टू डिफरेंट सिटीज मल्टीपल लोकेशन इवन टाउन टियर 2 टियर 3 यस यस सिटीज। यस, हम इसको ऐसा मॉडल लाएंगे कि अगर कोई गांव का लड़का है या कोई जैसे इंडिविजुअल है उसको स्टार्ट करना है किसी फ्रेंचाइजी, तो हम वो मॉडल ही हटा देंगे कि फ्रेंचाइजी लेने के लिए अभी माइंडसेट है ना फ्रेंचाइजी चाहिए तो यार हम्म। 10-15 लाख खर्च करना है। हाँ हाँ हाँ। मैं बोल रहा हूँ भाई तेरे को फ्रेंचाइजी में दे दूंगा 2 लाख के अंदर, तू तेरे को बस डेडिकेशन होना चाहिए कुछ बड़ा कर। नाइस। तो मैं फ्रेंचाइजी मॉडल जो वो माइंडसेट है ना उसको भी हम्म। क्रैक करना चाहता हूँ। मतलब हाँ। बेसिकली लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि यार अगर मुझे बिजनेस चालू करना है तो हम्म मुझे पैसा चाहिए। नहीं चाहिए हम्म पैसा, आपको बस आइडिया चाहिए या फिर आपका माइंडसेट होना चाहिए कि जुनून होना चाहिए कि मुझे करना है। आप सब फिगर हम्म। आउट कर लोगे, इतना रिसोर्स है दुनिया में अभी प्रोवाइड हो रहा है, सब कुछ फिगर आउट कर लोगे। मनी एक एक्सक्यूज बन के रह गया है कि पैसा नहीं है तो नहीं कर पा रहे। डेफिनेटली राइट वो राइट। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट बिना पैसे के भी चीजें होती हैं अगर आप सही तरीके से रिसर्च करो तो। राइट राइट राइट। ऑल राइट। आपने मेरे को अपने सारे बिजनेसेस के बारे में बताया एंड दे हैव आई हैव एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क नाउ। आप एक चीज नहीं रिसर्च कर पाए अभी। What did I miss? You just, I think you just gone through my LinkedIn only. Yeah, you Yeah, haven't seen my Instagram. That's why आप एक चीज भूल गए अभी। Now हाँ मुझे I am also a full-fledged content creator also. okay, This that is is one an more side. insight to me as well. Okay. I have started like मैंने देखा था आपने LinkedIn पे like you have started doing your personal branding and all. Uh, वो तो चल रहा है, वो नहीं वो तो उसको मैं काउंट भी नहीं करता कंटेंट क्रिएशन में। वो तो मेरा डेली बेसिस पे मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ, इनसाइट्स प्रोवाइड करता हूँ, वो तो है ही है। अच्छा। So like बट what's happening on Instagram? सो ये मैंने अभी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं बताया है। मेरा जो Okay. ये मेरा पर्सनल बिलीव है बहुत टाइम से, जो मुझे बहुत टाइम से करना था, एंड हम्म अब जाके उसका मैंने स्टार्ट किया है। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, अभी इंडिया में 20 स्कूल्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है। मास्टर यूनिकॉर्न करके एक हाँ है जो हाँ अच्छे हाँ। लेवल पे ग्रो कर रहा है, जहाँ Right पे right। फंडिंग वगैरह मिलती है। बट टायर 2 टायर 3 सिटीज को कोई टारगेट नहीं कर रहा है। टायर Fair। 2 टायर 3 सिटीज में आज भी यूथ वही है, या तो वो रील देख रहा है, हाँ। या फिर वो पबजी खेल रहा है, बीजीएमआई जो भी खेल रहा है, या Right फिर वो right। बैठा है कि उसके पिताजी धंधा खोल देंगे और वो हम्म। गद्दे पे बैठ जाएगा, या Right। फिर वर्स्ट केस क्या है कि ऑलरेडी पापा का बिजनेस है वहां बैठ गया। हम्म। इसके अलावा एक यहाँ परसेंट गवर्नमेंट जॉब। होगा जो वहां से निकल के जा रहा है, या फिर हाँ गवर्नमेंट जॉब, हम्म सरकारी नौकरी लग गई, पापा हम्म ने लगवा हम्म दिया, अप्रोच से लग गई। इसके हम्म। आगे सोच ही नहीं रहा है टायर टू टायर थ्री। मतलब है 2-3% क्राउड है जो कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बट राइट। मैक्सिमम जो क्राउड है वो नहीं कर रहा है कुछ भी। और जब से हम्म कोविड के बाद से
इतना इंटरनेट एक्सेस है, सब कुछ है, Hmm. रील, इंस्टाग्राम रील और ये वो, तो वो स्वाइप 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 ही चल रहा है और वो स्वाइप में ही जिंदगी दिन कट रहे हैं अपने, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे। Right, तो right. व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज वाया माय कंटेंट, मेरा नीश बहुत सिंपल है, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, बिजनेस को प्रमोट करना, Hmm. उसकी बेसिक्स तक जाना, उसके ए टू जेड टर्मिनोलॉजी से लेके सारा चीजें बेसिक्स में बताना, टायर टू टायर सिटीज के बच्चे को, कि उसको समझ आ जाए कि बिजनेस कैसे खड़ा करते हैं। अगर Okay. उसको दिमाग में है कि मुझे बिजनेस खड़ा करना है, तो आप मेरे को फॉलो कर लो, आपको 0 से लेके 1 तक मैं पहुंचा दूँ। नॉट जस्ट वाया कंटेंट, कंटेंट एक चीज है जहां से आपको नॉलेज मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ Hmm. नॉलेज से कुछ नहीं होता, एग्जीक्यूशन, आई ऑलवेज बिलीव इन एग्जीक्यूशन। Yeah. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, एज अ इंडिविजुअल प्लेयर मैं अभी सारा कंटेंट डाल रहा हूँ, बट मेरा मोटो है एक बी स्कूल क्रिएट करना, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर टायर टू टायर 3 सिटीज, जहाँ पे इफ यू हैव एन आइडिया, आई विल हेल्प यू टू बिल्ड योर आइडिया एंड आई विल हेल्प यू टू रीच आउट टू 0 to 1 एट एनी वे पॉसिबल, फ्री ऑफ कॉस्ट। आई विल नॉट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू, बिकॉज आई वॉन्ट, इंडिया में पोटेंशियल है, यूथ हमारे यहाँ का अगर चाहे तो बहुत कुछ बहुत बड़े लेवल पे कर सकता है, बट हो नहीं रहा है, जस्ट बिकॉज उसके पास राइट डायरेक्शन नहीं है, राइट पाथ नहीं है। अभी बहुत कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो हर डेली पे हर कोई ज्ञान दे रहा है, ये कर लो, ये टूल आ, Hmm. 1 महीने में 1 करोड़, 1 साल में 1 करोड़, 10 दिन में ये चैलेंज, वो वेल एंड गुड है, लेकिन आप उसको सिर्फ देख रहे हो, आप उसको Right. एग्जीक्यूशन पे तो ला ही नहीं रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, यहाँ से होके यहाँ से जा रहा है वो, उसके बाद वही रूटीन है, वही जिंदगी है, वही खा रहे हो, वही सब कुछ, एग्जीक्यूट तो कुछ हो नहीं रहा ना, सिर्फ यहाँ आके Hmm. यहाँ से निकल जा रहा है वो। मुझे उस चीज को एग्जीक्यूशन में बदलना है, एंड उसके लिए मैंने जो कंटेंट क्रिएशन चालू किया, ये एक जस्ट अ फर्स्ट है, ये 5% है जो मैंने अभी किया है, 95% जो मेरा प्लान है वो भी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है। वो तब करूंगा मैं जब मैं इस लेवल से थोड़ा ऊपर उठ जाऊंगा, जब मेरे पास रीच हो जाएगी, मेरे पास कम्युनिटी होगी, मेरे पास लोग होंगे, लोग मेरे को जानने लगेंगे, तब जाके फिर मैं वो चीजें ओपन करूंगा लोगों के लिए कि ये और अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए। फिर चाहे आप Like, उसको hmm. एडवाइजर बोलो, फिर चाहे आप उसको एज अ मेंटर बोलो, जो भी टर्म्स दो आप उसको, बट मेरा प्लान है टायर टू टायर 3 सिटीज के लिए एक ऐसा बी स्कूल डिजिटली खोलना, जहाँ पे मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ, गाइडेंस से लेके सब चीजें, टीम बिल्डिंग कैसे होती है, क्या सारा प्रोवाइड होता है, सब चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ उनको, टू बिल्ड देयर ओन कंपनी, टू बिल्ड समथिंग ऑफ योर ओन। तो वहां से ही उस चीज का शुरू किया है। इसका मेरा टैगलाइन बहुत सिंपल है, फॉलो योर ड्रीम। Hmm. सारी जगह मेरा हर वीडियो के एंड में आता है, फॉलो योर ड्रीम। दिस इज नॉट जस्ट फॉर समवन जिसको स्टार्टअप बिल्ड करना है या फिर कंपनी खड़ी करनी है या दुकान खोलना है, इट्स फॉर एवरीवन। अगर आपका ड्रीम है आपको जॉब चाहिए, अगर आपका ड्रीम है मुझे 1 करोड़ की जॉब चाहिए, अगर आपका ड्रीम है आपको यूएस जाना है, अगर आपका ड्रीम है आपको ये करना है, अगर आपका ड्रीम है मुझे सोशल वर्क करना है, आई विल बी देयर, हु इज गोना सपोर्ट यू, हु इज गोना हेल्प यू विथ ईच वे पॉसिबल। जो भी आप बिल्ड कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, हेल्पिंग यू टू फॉलो योर ड्रीम। बहुत सिंपल, बहुत एक So बेसिक चीज है ये। if I have an idea and if I were to reach out to you, then you are the one whom should एनी I contact with? टाइम, एनी टाइम, एनी टाइम, एनी टाइम, आई वुड Right. लव टू हेल्प यू टू बिल्ड योर कंपनी, और जो भी आपका ड्रीम हो। जरूरी नहीं है कि हर इंसान का ड्रीम नहीं होता कंपनी बिल्ड करना, फिर यार जॉब कौन करेगा, वो Exactly. कंपनी Hmm. चलाने के लिए तो लोग चाहिए ना। बट Exactly, जो exactly. भी आपका ड्रीम, अगर आपका ड्रीम है मुझे 1 साल में अच्छी बॉडी बनाना है, मेरे को मेंटली स्ट्रांग होना है, आई विल बी देयर टू सपोर्ट यू, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। मैं वो हूँ जो आपको जज नहीं करने वाला, मैं वो हूँ जो आपको वैसे ट्रीट नहीं करने वाला। हर बेस्ट वे पॉसिबल आपको मेरे से जो हेल्प चाहिए, मेरा नेटवर्क चाहिए एग्जिस्टिंग, आपको दुबई में कोई हेल्प चाहिए, आपको इंडिया में कुछ लोकल सपोर्ट चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करूंगा। बट मेरा मोटिव ये है कि हर दिन आप 1% बेटर बनो। अगर आप वो हो रहे हो तो आई एम वेरी वेल सेटिस्फाइड, मुझे और कुछ नहीं चाहिए इसके लिए। So, like, how will you will be, connecting with these people on a day-to-day basis? सो मोटो सिंपल है, अभी मैं कंटेंट डाल रहा हूँ, धीरे धीरे मेरा इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, Right. लोग मेरे को फॉलो करेंगे, Hmm. देन मेरा नीश Right. क्लियर है, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, स्टार्टअप्स और ये वाला। तो एट द एंड लोग मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे कि हमको ये करना है, हमको वो करना है, देन फिर वहां से मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड करूँ, या फिर वो मैंने इतना उस लेवल पे फिगर आउट नहीं किया, अभी मेरे पास पूरा प्लान है कि मुझे ऐसे ऐसे धीरे धीरे स्टेज पे जाना है। बट अभी स्टार्ट मैंने कंटेंट से किया है, जहाँ पे मैं कंटेंट क्रिएटर के थ्रू लोगों को मोटिवेट करूं, लोगों को बताऊं कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे टर्मिनोलॉजी होती है, फंडिंग क्या होती है, मार्केट रिसर्च क्या होता है, बिजनेस डेवलपमेंट क्या होता है,
रोड मैप कैसे बनता है, प्लानिंग कैसा होता है, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आप मार्केट में कैसे उतार सकते हो, बहुत जो बेसिक चीजें होती हैं। फाउंडर्स क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, जो कॉमन मिस्टेक, कभी हम्म। ईगो क्लैश होता है, कभी आइडियाज मैच नहीं होते, ये जो कॉमन मिस्टेक्स है जिनके बारे में आई डोंट थिंक, मैंने नहीं देखा, बात कर रहे हैं हर कोई। अभी बात कर रहा है कि हम 0 से 1 करोड़ कैसे बनाए 10 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में। मैं नहीं बोल रहा कि मैं आपको पैसे बना के दूंगा, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ आप हर दिन 1% बेटर बनो, बस, किसी भी वे में। राइट राइट मैं कोई राइट। प्रॉमिस नहीं कर रहा कि आप पैसे बनाओगे या कुछ करोगे, ना को भाई, वो सब अपने से नहीं होता। हर दिन आपको 1% बेटर बनाने के लिए मैं हेल्प कर सकता हूँ, बट मैं अगर 2% उस, मतलब उस चीज का 98% आपको देना पड़ेगा, 2% मेरी साइड से आएगा, क्योंकि मैं, मेरा 2% मेरे लिए 100% है, बट अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डालोगे तो फिर वही हो गया, आपने यहाँ से ज्ञान ले लिया और हो गया, तो वैसे नहीं चलेगा। यू हैव टू पुट राइट राइट। एफर्ट्स, जो भी आपको अचीव करना है उसके लिए। All right, I'll get back to you on this after a call. श्योर श्योर श्योर। After this call. दिस इज द बिगर ब्रॉड वर्जन जो मैंने अभी स्टार्ट किया अराउंड 1 मंथ अगो। मैं को 2 साल लग गए कंटेंट क्रिएशन जर्नी चालू करने में, 2 साल से सिर्फ मैं सोच ही रहा था करना है करना है करना है करना है, लेकिन मैं हमेशा आगे बढ़ता था, 2 स्टेप पीछे लेता था, फिर थोड़ा सोचता था, फिर 2 स्टेप पीछे लेता था, कभी कैमरा शाय, कभी टाइम नहीं मिल रहा, और सारे एक्सक्यूजेस थे। आज मेरे को, हाँ, पहले लगता था कि नहीं यार ये एक रीजन है जिसके कारण नहीं कर रहा हूँ, मतलब खुद को समझा देना कि नहीं यार ये है, नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे। बट आज जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे पता है हर चीज पॉसिबल है। ये सारे एक्सक्यूजेज है कि मैं टाइम नहीं दे पा रहा, मैं कैमरा शाय हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा, इस रीजन से, उस रीजन से, सब एक्सक्यूज। डेली बेसिस पे मेरा कंटेंट जा रहा है, मैंने ट्राई कर रहा हूँ मैं कि मैं 365 डेज में 365 रील्स प्रोवाइड करूँ विद अच्छा कंटेंट, एक भी दिन गैप नहीं, एक भी दिन कुछ नहीं, वो तो लाइक प्लान लेके चल अभी रहा कितना टाइम हो गया इसको स्टार्ट हुए? हूँ। ऑलमोस्ट 2 वीक्स होने वाले हैं। So लास्ट like मंडे आई स्टार्टेड। uh-huh. So now since you have touched upon content creation, so I was trying to do this, I guess 1-2 साल से, but same एक step आगे लेना, 2 step पीछे लेना, एक step आगे लेना, 2 step पीछे लेना. Same thing is happening with me also. हम्म। कि मतलब थोड़ा सा सोच लो, थोड़ा सा एग्जीक्यूट कर लो, एंड देन कुछ हो जाता है, एंड देन समथिंग कम्स अप, एंड देन यू फिर अगेन वो टेक अ स्टेप रुक बैक. जाता है। हाँ, फिर वो रुक जाता है. सो ये चैलेंज तो मेरे साथ भी है, जो मैं अभी भी फेस कर रहा हूँ. लाइक आई एम स्टिल, आई एम नॉट एबल टू कोप अप. तो आप कैसे कर रहे हो, मतलब इसको कंटेंट बैचेस में बना रहे हो, लाइक हाउ आर यू डूइंग इट? बेसिकली यूर ट्राइंग टू से कंसिस्टेंट कैसे हूँ मैं। एग्जैक्टली, या. अह, And reels banana is not something, अगर if you really want to give an insightful information to your audience, it's not just कि कैमरा लिया कुछ भी मैंने बोल दिया, और मतलब this, I guess there's a lot of thing that goes behind, पहले मैं शूट या करूंगा, then there is बहुत कुछ, cover editing, and then बहुत scheduling, and also engaging with the audience on Instagram. That's how the reach happens. राइट। वो भी काफी सारा, मतलब उसमें भी टाइम कंज्यूम होता है. So like how you manage all this? सो व्हाट आई डू इज, मेरे कंसिस्टेंसी का ना एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। व्हाट आई हम्म. डू इज, अगर मैं पहले गोल बनाऊंगा कि मुझे 2 साल में ये करना है, 2 साल में मेरे को यहाँ अचीव होना है, 1 साल का मेरा ये गोल है, 6 महीने का मेरा ये गोल है, देन व्हाट आई डू इज आई राइट डेली कि मैं आज क्या क्या कर रहा हूँ, एंड देन मैं उसमें से फिगर आउट करता हूँ कि मैं उस गोल को अचीव करने के लिए आज कितने एफर्ट्स डाल रहा हूँ। अगर मैं एफर्ट्स नहीं Okay. डाल रहा हूँ तो फिर मेरे को कोई हक नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि मेरा 2 साल बाद ये गोल है। नो, नहीं होगा Okay. वो। आपको आपके साथ सच बोलना पड़ेगा। आप खुद को आंख बंद करके अंधविश्वास में डालोगे कि नहीं यार हो जाएगा, तो कभी नहीं होने वाला। डेली आप अपने आप को रियलिटी चेक दो कि ये चीज आज मेरे को करनी है, एंड इसमें से कितनी चीजें मैं ऐसी कर रहा हूँ जो मेरे को वो 2 साल बाद जो मेरे को गोल अचीव करना है उसमें हेल्प कर रही है। हम्म. टाइम लगेगा इस चीज को करने में, डेली बेसिस पे आप राइट डाउन करोगे थोड़ा लगेगा, बट दिस विल वर्क, 200% दिस विल वर्क, ये मेरे साथ वर्क कर रहा है। डेली बेसिस पे आई Okay. राइट डाउन, आई विल शो यू। ये मेरा अ, ये मेरा वो है, मैंने अभी ये रिसेंटली Plan. मंगाया है, पहले मैं नोशन में करता था, बट ये अभी मैंने हम्म. मंगाया, मेरे को ऑनलाइन एक कहीं तो दिखा था, देन ये मेरा कल ही हाँ डिलीवर हुआ। हाँ. इसमें दिया हुआ है डेली हम्म. क्या है, मेरे को क्या करना है, स्केड्यूल, जैसे यहाँ पे ये है स्केड्यूल है, इसकी जगह मैं इसको काट के ब्रेन डंप करने वाला हूँ। जो भी थॉट्स डेली बेसिस मेरे हम्म. माइंड में आ रहा है वो सब मैं यहाँ पे लिखूंगा। ये सारा ये मैं अभी Right. स्टार्ट करने वाला हूँ। इसके पहले भी मैं ये करता था, बट मैं ऑनलाइन करता था डिजिटली।
बट जब आप लिखते हो ना, तो आपका माइंड उस लेवल पर वर्क करता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। डिजिटली वो आप दिन भर राइट। ही हम वो करते हैं, टाइपिंग टाइपिंग, ये भी हो रहा, वो भी हो रहा, वो भी। नहीं, पेन पेपर उठाओ, लिखना चालू करो। ये आज के टास्क है मेरे, एंड इसमें से मैं क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहा हूँ अपने साइड से, और क्या मैं ऐसी चीज कर रहा हूँ जो मेरे को अचीव करने की है लिए हेल्प कर रहा है एक साल बाद इस गोल को। सपोज मेरे को नेक्स्ट ईयर गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी आ रही है 20 लाख राइट। की। 20 लाख को डिवाइड कर दो 12 महीने 13 महीने, जितने भी महीने बचे, तो मैं अगर डेली उतना लेवल पे काम कर रहा हूँ क्या कि मैं एक साल बाद इतना पहुंच जाऊंगा अर्निंग में कि मेरी गाड़ी आ जाएगी? अगर नहीं कर रहा हूँ तो भाई आप गलत जा रहे हो। सिंपल सा फंडा है ये, आपको कंसिस्टेंट ला ही देगा। आज नहीं तो कल आपको खुद को अंदर से रिग्रेट होगा। डेली रियलिटी चेक दोगे ना, तो रिग्रेट होगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में। अभी क्या होता है ना कि या तो हम आप गोल अपने छोड़ आप को दोगे। भ्रम में ही रखते हैं कि यार आज नहीं तो है, कल कर राइट। लेंगे, परसों कर लेंगे, यार हो जाएगा। नहीं भाई, नहीं होगा। डेली खुद को बोलो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। राइट। और तेरे को पुश करना पड़ेगा, तब जाके होगा, नहीं तो नहीं होगा। आज मुझे एग्जैक्टली। कंटेंट डालना है, मतलब डालना है, कोई है जो वेट कर रहा है उस कंटेंट के लिए कि 6 बजे रित्ते का कंटेंट आएगा, हम्म। करो। कोई तो बैठा है वहां पे जिसको है उम्मीद कि यार भाई कुछ डालेगा आज, मेरे को देख के उससे मोटिवेशन मिलेगी, डालो आप। तो डालो। हाँ, मेरे को बी स्कूल अगर बनाना है, मेरे को यूथ को एम्पावर करना है, तो मेरे को ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स अगर मैं करूंगा तो अचीव होगा, तो करो डेली बेसिस पे काम। रोड मैप बनाओ, विजन, प्रैक्टिकली विजन क्लियर रखो। अभी हम बहुत लोग क्या करते हैं, उसमें रहते हैं, अरे यार 2 साल में 1 करोड़। भाई तू देख, अगर तू अभी कुछ भी नहीं है, तेरी एक भी कंपनी नहीं, कैसे 2 साल में 1 करोड़? 100 वन एग्जैक्ट। 1 ईयर में 1 करोड़ चैलेंज, इससे आपका कंटेंट बिल्ड हो जाएगा, ऑडियंस जनरेट हो जाएगी, और शायद आप अचीव भी कर लो। लेकिन ये आप लोगों के लिए कर रहे हो, आप खुद सस्टेन नहीं के लिए कर। क्या कर रहे हो? हाँ। सस्टेन नहीं कर पाओगे। एक साल बाद क्या होगा अगर हो गया तो? लॉन्ग टर्म आप देखो ना। तो रियलिटी राइट। चेक देना डेली खुद को बहुत जरूरी है, और रियलिटी रोड मैप बनाना बहुत जरूरी है कि हाँ ये रियलिटी है और इसको मैं इजीली अचीव कर सकता हूँ। एफर्ट डालूंगा, मेहनत करूंगा तो मैं कर दूं। एक और चीज बहुत अच्छी बताता हूँ जो मैंने अभी स्टार्ट की है। आपका कोई भी क्लोज फ्रेंड है, कोई भी राइट। आपके क्लोज फ्रेंड नहीं, आपकी फैमिली में आपका भाई है, मम्मी है, एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाओ, टू डू लिस्ट करके वो बनाओ, टेम्पलेट बनाओ, जिसमें डेली मैंने ये किया। आप उनको बोल दो, राइट। अगर मैंने डेली रात को 10 बजे के पहले नहीं भेजा कि मैंने क्या किया है, प्लस उसमें कुछ चेक पॉइंट्स है, प्रोडक्टिविटी मेरी एवरेज है, बिलो एवरेज है, क्या है। अगर मैंने नहीं किया तो डेली 500 रुपये कटेंगे मेरे, जो मैं आपको ऑन द स्पॉट भेजूंगा। उन्हें भी चाहिए सामने वाले के। दैट इज मैंने सो नाइस, मैंने आई ये मीन। चीज चालू की है अभी, विथ 2 ऑफ माई फ्रेंड्स, अलग अलग लोगों से। अभी हम कंपनी लेवल पे भी ये काम करते हैं कि डेली हम आपको ओके। टू डू लिस्ट भेजना है, 10:30 मतलब 10:30 आपको भेजना है। मतलब ये हम बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं। इस टाइम पे नहीं आया तो जो जिसने नहीं किया वो सबको इतना इतना अमाउंट तुरंत ट्रांसफर करेगा। देखो आप अगले दिन कैसे नहीं आते 10 साढ़े 10 बजे मीटिंग में, और कैसे नहीं भेजते। इसको अगर बड़े डन। लेवल पे करना है तो ऐसे कर सकते हो कि मैं और मेरा फ्रेंड है, आपने उसके साथ बोला कि भाई तेरे को बस सिर्फ ये देखना है कि मैं डेली डाल रहा हूँ नहीं डाल रहा हूँ। कल को अगर मैंने नहीं डाला तो आज जो गोवा की ट्रिप है वो मैं तेरी 50% स्पॉन्सर करूंगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा उस ट्रिप में। सो इट्स बेसिकली a psychology game हाँ, and you we must वो होने चाहिए तुम्हारे पास वैसे लोग भी। आई मीन या। तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी कर हाँ। सकते हो ना, या क्लोज फ्रेंड है आपके, मम्मी है, या भाई है, एग्जैक्टली किसी के भी या। साथ चालू कर हाँ। सकते हो। अब उसमें एक्सक्यूज दोगे कि मेरी फैमिली बिजी है ये, तो भाई फिर तो आप नहीं कर सकते। फिर तो आप कर ही साइकोलॉजी नहीं गेम ही सकते, तो फिर तो आप खेलना है हटा आपको दो। खुद के साथ। भाई अगर मेरे को हाँ। गोवा राइट। का पैसा देना पड़ जाएगा यार, मेरा आज का 500 रुपये हराम में चला जाएगा, भाई कर लेता हूँ ये काम। 10 बजने वाले हम्म। डाल देता हूँ। राइट। खुद आप उस चीज को पुश करो अपने आप को। आपको आपके अलावा और कोई पुश नहीं कर सकता दुनिया में। माँ बाप आपको बता सकते हैं, मेंटर्स आपको गाइड कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स आपको विजन दिखा सकते हैं कि भाई 1 करोड़ एक साल में है, 2 करोड़ इतने में है। अगर आप खुद से नहीं करोगे मेरे भाई, तो कितना ही आप ज्ञान दे लो, कितना ही कर लो, नहीं होने वाला। मैं क्यों बोला मेरा बी स्कूल के पीछे मोटिव है? 2% मेरी तरफ से, 98% आपको देना पड़ेगा। आप नहीं दोगे तो भाई मैं 100% देके भी क्या कर लूँ? कुछ नहीं कर लूँ। आपको देना पड़ेगा। एट द एंड तो हाँ। एट द राइट एंड आपको राइट खुद राइट। को करना पड़ेगा, तो ही चीज हो। तो ये एक अलग अलग वेज है, ऐसे और भी बहुत सारे वेज है, आप कर सकते हो इस वे में। बहुत चीजें चालू कर सकते हो। टू डू लिस्ट एक अच्छी चीज है, इसमें आप किसी फ्रेंड किसी फैमिली मेंबर से, और डेली अगर 2 दिन आपके 500 कटेंगे ना,
तीसरे दिन अपने आप लाइन पे आ जाओगे कि नहीं यार मेरे को ये काम करना है और मेरे को भेजना So recently, the मैं अभी मुंबई से जयपुर आ रहा था on my hometown. So the मेरी like one of my closest friends has gifted me this to-do list. है। और कुछ नहीं दिया उसने, मेरे को to-do list ही दी बहुत है. अच्छा गिफ्ट, So like बहुत अच्छा। right, right. Okay. दिस विल वर्क। I guess लगता है कि बहुत छोटी चीजें नहीं है, लेकिन आप कंसिस्टेंट रहो इस चीज में, दिस विल डेफिनेटली वर्क। हर दिन 0.1% भी अगर इम्प्रूवमेंट आ रहा है ना भाई, तो एक साल में वो 0.1 10% 20% कब हो जाएगा ना, आपको पता नहीं चलेगा और आप बोलोगे यार मैं यहाँ से यहाँ आ गया। बहुत अच्छा है, बहुत कुछ exactly. होता है। ट्राई करके देखो। टू डू लिस्ट या मतलब मेरे साथ टू डू लिस्ट का एक्सपीरियंस रहा है. सो लाइक इन 21 आई गेस 2021 आई स्टार्टेड माय ओन स्मॉल वेंचर, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुआ. सिंस आई एम फ्रॉम अ फैशन बैकग्राउंड, तो मैंने उसी में बिल्ड करने का कोशिश किया था. तो उस टाइम पे आई यूज टू राइट वट एवर आई यूज टू लाइक आई वट एवर आई प्लान थ्रू आउट द डे. हम्म। एंड आई हैव दैट अंदर से वो मोटिवेशन आता था, नो आई हैव टू टिक मार्क ऑल ऑफ दिस. एंड वो 3-4 महीने तक, 1 जनवरी से मैंने स्टार्ट किया था. एंड वो 3-4 महीने तक जब तक मेरा बिजनेस बिल्ड हुआ, लाइक आई मेड द वेबसाइट एंड एवरीथिंग, जब वो एग्जीक्यूशन में मेरे को प्रॉब्लम कहाँ पे आई, लाइक ओके आई हैव रियलाइज दिस इज नॉट द प्रोडक्ट. आई वुड से दिस इज नॉट आई वाज नॉट एबल टू रीच आउट टू द टारगेट ऑडियंस. दिस द रीजन लाइक इट गॉट शट डाउन. या तो उस टाइम मेरा टू डू लिस्ट बंद हुआ था, लेकिन जब तक वो था आई वॉज टिकिंग एंड मार्किंग एवरीथिंग. वो 4 महीने आई ऑलवेज फेल्ट मोटिवेटेड, वो 4 महीने सबसे ज्यादा, लाइक एज कम्पेयर टू बिकॉज टुडे यू वर ऑल्सो. बिल्डिंग समथिंग ना, यू वर लाइक या यार ये अचीव करना एग्जैक्टली. है, अब ये अचीव करना है, अब ये करना है। हाँ, राइट राइट. तो वो वहां से जब एक क्रॉस लगा कि यार ये नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट द राइट वे टू डू इट, और आई पता नहीं मुझसे क्यों नहीं हुआ, बट नाउ आई हैव द लर्निंग्स फ्रॉम इट. आई विल डेफिनेटली गोइंग टू अप्लाई इन फॉर श्योर, अनदर वेंचर. फॉर श्योर। या तो टू डू लिस्ट वो जो टू डू एक लिस्ट वर्क्स। या टू डू लिस्ट वर्क्स. टू डू लिस्ट वर्क. All right. So, since we have touched upon a lot of things in this podcast, and you have explained me how it all started from your journey, how you shifted to, Kota, and then now you are in Dubai and handling two big businesses at the same time, and Gossip Circle also, which is about to One become the more, best. I am, you don't know one, Okay, the list. one more, which I am All building right. right now. So, would you like to give some, Yeah, BTS, any it's idea about open. that? Like I am a full-time trader also, Okay. forex trader. So, I used to trade 4x. on gold, Okay. gold All right. commodities, N- Mm-hmm. not cryptocurrency, not Nifty or Indian stock market, but complete forex trader. ऑल राइट. So, सो आई गेस ये वाला जो डिस्कशन है, ये एक अलग से पॉडकास्ट के लिए रखूंगा मैं, क्योंकि ये एक डिफरेंट सेट ऑफ and ऑडियंस, डिफरेंट सेट ऑफ माइंडसेट, एंड इवन आई वांट टू लर्न दिस. तो I am इस building पे हम so जरूर many कंटिन्यू. हाँ. thing, and I am building a company around trading. जो और जो मैं प्लान कर ओके. रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, वैसा हुआ नहीं है। डेफिनेटली ट्रेडिंग कभी तो तो कर होगा. रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग के अराउंड में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी से लेके बहुत कुछ अच्छी लेवल बिल्ड कर रहा हूँ फॉर बिगनर्स, फॉर ईच एंड एवरी। बट उसके पीछे भी माइंडसेट वही है, अगर आप 100% दोगे तो ही आप वहां से निकाल पाओगे, अगर आप नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको वहाँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग लाइक गोल्ड, दीज आर नॉट स्टॉक्स, निफ्टी नो, विफ्टी, कुछ नहीं, सिर्फ आई गोल्ड. डोंट डू फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर नास्डेक आता है, गोल्ड आता है, कंट्री करेंसीज आती हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, ये सारा फॉरेक्स के अंदर आता है। तो आई पर्टिकुलरली ट्रेड ऑन गोल्ड ओनली बिकॉज आई एम मोर कंफर्टेबल विद गोल्ड ट्रेडिंग। राइट. ऑल राइट. ठीक है. So, like, suppose now shall we move on to या the या फॉर question श्योर, फॉर segments? श्योर, फॉर श्योर। Or is there anything that you नो would नो नो like नो to नो नो give नो me? ऐसे, और आप ना ऐसे मत डालना कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक और है, एक और है, फिर लोगों को लगेगा यार ये तो ज्यादा ही फ्लेक्स कर रहा है। बट नहीं, डेफिनेटली मैं ऐसे नहीं डालूंगा, बट आई थिंक यू आर नॉट फ्लेक्सिंग इट आउट. मुझे तो ये लग रहा है कि आप शायद एग्जीक्यूशन में ऑलरेडी चीजें कर चुके हो, उसके बाद बता हाँ रहे हो. हाँ, सो डेफिनेटली सारी चीजें एग्जीक्यूशन में चल रही या. हैं अच्छे लेवल पे। हाँ. यू वोंट बिलीव, हाँ. मेरे इस पॉडकास्ट के पास 4 मीटिंग लाइंड अप है, 3 अलग अलग कंपनीज जो मेरी रहे उनके साथ, और एक और इंडिविजुअल और है। तो उस पे सारे चीज जो मैं राइट बता रहा राइट. हूँ ये सब ऐसा नहीं है कि होने वाला है, ये सब चल रहा है, ये सब हाँ. हो रहा है, प्रेजेंट में सो है यू कैन सारा। फ्लेक्स, देयर इज नो बट आई प्रॉब्लम. डोंट वांट टू बिकॉज आई डोंट लाइक फ्लेक्सिंग, बट या।
या We can move for next segment. ऑलराइट। सो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि लाइक when an entrepreneur in India, since you have the business background, you have seen all these, in your family, how the business works, and eventually when you got to meet your friends in Kota and other districts as well, उनका भी कुछ ना कुछ बिजनेस रिलेटेड बैकग्राउंड था, सो कहीं ना कहीं वो बिजनेस का नॉलेज, बिजनेस का सेंस था। एंड आई गेस मुझे लगता है कि जिसको भी आज की डेट में बिजनेस स्टार्ट करना है, जेन्युइनली बिजनेस स्टार्ट करना है, उसने कहीं ना कहीं अपने अराउंड में बिजनेस देखा है। True. लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैंने भी मेरे फैमिली में देखा है कि लाइक हाउ बिजनेस हैपेंस। एंड मैंने ये भी देखा है कि व्हाट आर द चैलेंजेस हैपन। सो लेकिन वो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग भी जो आती है, वो आई थिंक कुछ करने के बाद उसी से बिजनेस से ही आती है। आई डोंट नो अबाउट जॉब, जॉब में भी आती है व्हेन यू हिट दैट गोल्स, व्हेन यू हिट दैट टारगेट, बट जो बिजनेस में आती है। सो लाइक व्हेन somebody who want to start or get into something, कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है। लाइक इफ आई रीच आउट टू माय फ्रेंड्स एंड टॉक टू मेनी पीपल, द पहला क्वेश्चन उन लोगों के माइंड में आता है अगेन कि बिजनेस के लिए फंडिंग चाहिए, कि मेरे को एक रेस्टोरेंट ओपन करना है, सो आई नीड फंडिंग। मेरे पास कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए, या मेरे पास फंडिंग होनी चाहिए, या मेरे पास और एक्स वाई जेड रीजन, दिस एंड लिस्ट दैट गोज ऑन। बट वॉट आई फील इज, जितना मैंने बहुत ज्यादा नहीं समझा या किया नहीं है, जितना भी मैं समझ पाया विद कॉन्वर्जेशन एंड रीडिंग, आई थिंक एक आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए ना, वो जो फियर और डाउट खुद के माइंड में चलता रहता है, उसको ओवरकम करना जरूरी है। और तो आप इसका, आपका क्या टेक है इसके ऊपर? लाइक इफ अ बिगनर वांट टू स्टार्ट, तो वो सारे फियर, डाउट्स एंड दैट एंड थिंग्स ऑफ एंड नंबर ऑफ लिस्ट, उसको ओवरकम करने के अलावा, मतलब उसको ओवरकम करने के लिए हाउ वन शुड गो। बहुत सिंपल एक टर्म है जिसके पीछे मतलब जो सारे आंसर्स दे देगा, एग्जीक्यूशन। अगर आपको कुछ भी बिल्ड करना है, आपको जॉब करनी है, आपको ड्रीम जॉब चाहिए, ड्रीम बिजनेस बिल्ड करना है, ट्रेडिंग करनी है, कुछ भी चीज करनी है लाइफ में, एग्जीक्यूट कर दो उसी दिन से उस चीज। वेट मत करो परफेक्ट टाइम का, परफेक्ट प्लेस का, परफेक्ट एनवायरनमेंट का, परफेक्ट एस्ट्रोनॉजिल के भाषा में बोलो तो परफेक्ट वो नो, क्या बोलते हैं उसको, मुहूर्त। नो, परफेक्ट मुहूर्त का, हाँ मुहूर्त का, हाँ। परफेक्ट नॉलेज का, परफेक्ट लर्निंग का, परफेक्ट फियर, सब किसी का भी वेट मत करो। जस्ट एग्जीक्यूट द थिंग। एग्जीक्यूट करोगे आप, धीरे 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 करके आप हर चीज सीख जाओगे। हमने स्टार्ट किया पहले मैंने एमएनए रन किया मंथन के साथ, हमको नॉलेज नहीं था। पहले राइट। हमने किया, हमारा आईटी बैकग्राउंड है, लेकिन वेब 3 में मेरे को मार्केटिंग वाला साइड आता था, टेक साइड इतना नहीं आता। हमने स्टार्ट किया, हम धीरे धीरे बिल्ड किया, हमने सीखा वहां से, हमने रिसर्च करी, लोगों से बात करी, लोगों से समझा, सीखते गए, स्टार्टअप हो गया। मतलब आपको एक थिंकिंग रखनी चाहिए अपनी लाइफ में हमेशा कि मुझे हर दिन कुछ सीखना है। अगर आप वो करोगे ना तो आप सारी चीजें अचीव कर लोगे। गिरोगे, बट गिरने के बाद अपने आप उठोगे भी, अगर आप उससे सीखना चाहते हो तो। डे वन राइट। अगर आपको आइडिया आया है कि मुझे रेस्टोरेंट बिजनेस खोलना है, गूगल करो, चैट जीपीटी से पूछो रेस्टोरेंट बिजनेस कैसे खोलते हैं, वो आपको स्ट्रक्चर दे देगा। देखो आपके अराउंड में जो एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट बिजनेसेस हैं, कोई ना कोई हर किसी की पहचान में होता है जो रेस्टोरेंट चला रहा है या ठेले वाला है। उससे बात करो, भाई तू कैसे चलाता है, कितना रेवेन्यू होता है, कितना मार्जिन है, कितना प्रॉफिट है, कितने घंटे देना पड़ता है, सब सॉल्व हो जाएगा। आप एग्जीक्यूट तो करो। हम हमेशा गेम खेलते हैं अपने दिमाग के अंदर, फियर यहाँ है, माइंड में सब कुछ है, कैसे करूंगा, क्या होगा, फंडिंग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फैमिली है, वो ये सब यहाँ है। ये यहाँ से बाहर निकालो और एग्जीक्यूट करना चालू करो चीज़ों। धीरे 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 करके ना ये 100% जो भी डाउट्स हैं, ये सब धीरे 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 करके ना 10 पे आ जाएंगे और 0 पे आ जाएंगे एक दिन। और जिस दिन वो 0 आ गया ना, उस दिन आपका बिजनेस ऐसा दिखेगा कि यार ये बिल्ड कर दिया मैंने, वो कितना ईजी है इसको बिल्ड करना। बट एग्जीक्यूट करो। मेंटल गेम मत खेलो कि ये एक्सक्यूजेज है, ये प्रॉब्लम है, ये फंडिंग है, ये कुछ नहीं है। बिजनेस चालू करने के लिए एमबीए चाय वाला आज इतनी बड़ी फ्रेंचाइज मॉडल और सब कुछ चला रहा है, उसने भी तो एक ठेले से चालू किया ना। वो बंदा भी सोच राइट। सकता था कि यार मेरे को फंडिंग चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आज होता क्या वो, चाय सुट्टा बार, वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल। बिगेस्ट कंप्लीट बिगेस्ट बूटस्ट्रैप एग्जांपल। बिजनेस है वो। मतलब मेरे राइट। नॉलेज में बूटस्ट्रैप, मुझे नहीं पता अगर इंटरनली फंडिंग लिया नहीं है, 400 प्लस आउटलेट है। उन्होंने भी छोटे से चालू किया है। उनका भी वही था, राइट। शुरू में कस्टमर्स नहीं थे, फ्रेंड्स को बुलाया, फ्रेंड्स को साथ बैठाया, लोगों को लगा यार इतनी भीड़ क्यों हो रही है, धीरे धीरे कर फिगर आउट किया ना। एग्जीक्यूट राइट। किया करोगे तो फिगर आउट होता जाएगा।
जुगाड़ से, इधर उधर की चीजों से। अंदर ही अंदर रखोगे चीजों को तो फिर कैसे फिगर आउट होगा? वही वही मेंटल गेम खेल रहे हो ना आप, फिगर आउट तो कुछ कर ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे हो आप। अगर मेरे को गाड़ी देखनी है कि मेरी गाड़ी सही चल रही है नहीं है क्या है, तो उसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा ना गाड़ी लेके। और अगर एग्जैक्टली। आपको जैसे एक एग्जांपल है कि एक बंदा है, उस वो क्या बोलता है कि मैं गाड़ी उसी दिन निकालूंगा जिस दिन सारे सिग्नल ग्रीन हो जाएंगे। ये मैंने एक मूवी में देखा था। तो हम्म। उसमें वो जवाब देता है कि भाई, सारे सिग्नल ग्रीन कब होंगे कैसे पता चलेगा? जब तू गाड़ी निकालेगा। तो गाड़ी तो निकाल। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। गाड़ी निकालेगा, गाड़ी चलाएगा, तब तो पता चलेगा ना यार कि सिग्नल ग्रीन है नहीं है। गाड़ी ही नहीं निकालेगा तो कैसे पता राइट। चलेगा तेरे को सिग्नल ग्रीन है रेड है क्या है? एक मूवी में देखा था मैंने, इंडियन मूवी है, उसमें एक क्लिप था, हाँ वहां हाँ हाँ। वहां मेरे को बहुत अच्छा लगा ये। ये सही बात है यार, एग्जीक्यूट ही नहीं करोगे। माइंड में तो डेली 100 आइडियाज आते हैं, 100 चीजें आती है, 100 थॉट्स आते हैं। हर चीज तो नहीं कर सकते ना आप। किसी एक को पकड़ोगे कि लगोगे ये करना है तो एग्जीक्यूट करना चालू करो, उसको लिखो, उसके बारे में सोचो कैसे होगा अगर ये ऐसे होगा। उसमें तो आपके पैसे नहीं लग रहे ना। पूरा स्ट्रक्चर राइट। बनाने में, पूरा रोड मैप बनाने में, चाहे वो ड्रीम जॉब के लिए वो, चाहे वो एमबी के लिए, किसी भी चीज के लिए, उसके लिए तो पैसे नहीं चाहिए। उसके लिए सिर्फ दिमाग में जो आ रहा है उसको लिखो, उसको सोचो क्या करना है क्या नहीं करना। एग्जीक्यूट करो। उतना करोगे 200% वहां से कुछ ना कुछ निकल के आएगा जो आपको और आगे का रास्ता दिखाएगा। वहां से कुछ निकल के आएगा जो और आगे का रास्ता दिखाएगा। वो धीरे धीरे आपको ले जाएगा जहां पे आप पहुंचना चाहते हो। बट एग्जीक्यूट करो इस चीज को, सिर्फ अंदर ही मत दिमाग में चलाते रहो। बहुत सिंपल सी चीज। राइट। राइट। बहुत सिंपल, एग्जीक्यूशन इज द की। अगर किसी को कुछ भी आइडिया आ रहा है, सो कुछ भी लाइक है, उसको स्टार्ट स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग करो। इट। फेल हो गए और क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा फेल होके वहीं पहुंच जाओगे जहां अभी हैं। क्या दिक्कत है? सीखने तो मिलेगा उससे यार। पीछे तो नहीं उससे जाओगे, पीछे तो नहीं जाओगे ना, जहां एग्जैक्टली। अभी हो वहीं राइट। पहुंच जाओगे। हाँ फेल होना इज हाँ। बेटर ना। पास होने से राइट। ज्यादा अच्छा है फेल होना। सिखाता है वो राइट। आपको राइट। और बड़ी चीजों के लिए प्रिपेयर करता है। राइट। ओके, सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। सो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लाइक जो इनिशियल, सपोज लेट्स से इफ आई वांट टू स्टार्ट अ क्लोथिंग ब्रांड, and I will require some kind of investment or money for that. Let's say मुझे चाहे एक ही टी शर्ट बेचनी है, मेरे को 10 लोगों के लिए बेचनी है, फॉर दैट आई वुड से मुझे 10,000 रुपए चाहिए प्रोडक्शन को बनवाने के लिए, क्योंकि उनका एक सर्टेन एमओक्यू होता है, या ये होता है वो होता है। बिकॉज मुझे ट्रेडिंग नहीं करना है कि मैं कहीं और से खरीदूं कहीं से बेच दूं। आई जस्ट वॉन्ट कि मुझे मेरा बिजनेस खुद से बिल्ड करना है, फॉर दैट आई रिक्वायर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अमाउंट। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, इट कुड बी ट्रू इन एनी अदर इंडस्ट्री एज वेल। कमिंग ऑन टू द प्रोडक्ट साइड, अगर मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ तो टेंजिबल प्रोडक्ट की, तो वो जो छोटा सा भी जो मनी है, 5-10 हज़ार रुपए भी है, इट्स अ वेरी, समटाइम्स लोगों को वो भी नहीं खर्च करना है, या ऑप्शंस नहीं होते हैं कि नहीं यार अभी तक मैंने कुछ कमाया नहीं है, तो भले ही वो पिज्जा में उड़ा दें या पार्टी में उड़ा दें, वो एक बात अलग है। तो वो माइंडसेट को मतलब आप कैसे गाइड करना चाहोगे उन लोगों को कि यार ये। यार ये तो माइंडसेट ही गलत हो गया ना यार। आप पिज्जा में हजारों रुपए उड़ा रहे हो, लेकिन ऐसे बिजनेस पे जहां से आपको और प्रॉफिट हो सकता है वहां आप खर्च करना नहीं चाहते। तो ये राइट। तो चीज ही एकदम गलत हो गई ना यार, कैसे तो फिर चलेगा? बट ये होता है। हाँ, ये होता है, हाँ। डेफिनेटली होता है कि वो क्यों होता है? क्योंकि उनको लगता है कि रिस्क है यहाँ पे। अगर कल को नहीं चला, हम्म। मेरी वो 10 टी शर्ट नहीं बिकी, तो यार मेरा 10,000 का तो हम्म। लॉस हो जाएगा। वो फियर राइट। आपको करना ही नहीं देता है, रिस्क लेना ही नहीं देता है। तो उस इट fear- अगेन बॉल डाउन टू फेयर एंड हाँ, वो फियर ही डाउट्स। है ना। देखो, अगर मेरे को कोई बोलेगा कि आप भाई 10,000 दो, श्योर शॉट है एक महीने में 10,000 के 15 बन जाएंगे, आप नहीं दोगे क्या? आप दोगे। अगर आपको बोलूंगा दस डेफिनेटली। हजार दो, बट श्योरिटी नहीं है कि 10 के 15 बनेंगे या 10 के जीरो भी हो सकते हैं, आप दोगे क्या? हम्म। नहीं दोगे। साइकोलॉजी का गेम है ना, फियर है अंदर। बट वो एक स्टेप अगर पार कर लिया तो वहीं तो फिर आप एंटरप्रेन्योर बन गए। वही तो एक नाइस। बहुत थिन लाइन है एक नॉर्मल ह्यूमन में और एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन। रिस्क टेकिंग। रिस्क अगर हम्म। आपने एक, वो बहुत थिन लाइन है, उसको अगर आपने एक छलांग ही लगा ली ना छोटी सी, तो फिर वो आपको ले जाएगी। और अगर नहीं भी ले जाएगी तो आप उससे इतना सीख लोगे कि आप उससे 10,000 से फिर कल 10 का 1 करोड़ भी बना लो। राइट। तो वो छलांग लगाना ही एक बहुत चीज है। अपने फियर को मेंटली कंट्रोल करना मत दो आप।
अब अपने फियर को लेकर बहुत छोटी सी चीज है, इससे अपन को अगर कर लिया तो विन विन है, बहुत कुछ कर लोगे यार, सीखोगे एटलीस्ट। हम कितने लोग कितने सारे पैसे खर्च करते हैं कोर्सेज में और यहाँ वहाँ, एट दैट उसके हम्म। बाद भी कुछ भी नहीं होता है। अपने आप पे पैसे खर्च करो, बिलीव करो अपने आप पे। एक बहुत बड़ी चीज होती है, हम बिलीव नहीं करते। हमारा थोड़ा सोसाइटी भी वैसा होता है कि जो जिंदगी में गलत होना वो मेरे लड़के के साथ ही होना। ये सब होता ही है, ये होता ही है कि अगर वहां एग्जैक्टली, कुछ हो यस रहा है तो यस, हाँ। मेरे लड़के के साथ ही हुआ है, होगा जो होगा। मतलब मोस्ट ऑफ द हम्म। फैमिलीज में होता है ये, मेरे यहाँ भी कभी कभी होता है। हाँ बट उस हाँ। बिलीव को तोड़ो, अपने आप पे बिलीव करो। आप अगर अपने आप पे राइट। बिलीव करोगे तो दुनिया कितनी ही आपके अगेंस्ट हो, आप फोड़ दो। सेल्फ बिलीव ही है जो आपको इस फियर से कम करेगा, फियर को, और अपने आप पे बिलीव दिलाएगा, एंड देन फिर आप कुछ कर पाओ। ऑलराइट। तो ये तो एक मतलब बिलीव तो आता ही है मतलब हर चीज में, वेन एवर वी डू समथिंग। सो इसलिए मेरा भी जो लिंक्डइन पे मैंने लिखा लगा रखा है वो जो बैनर्स, आई बिलीव ओनली, तो वो तो होना ही चाहिए, उसके बिना तो खैर पॉसिबल ही नहीं है। हम्म। बट बिलीव वाला जो फैक्टर आता है वो कब आता है? डाउट खत्म करने के बाद, या डाउट माइंड में आ रहा है लेकिन मुझे बिलीव है कि नहीं यार मैं कर लूंगा, वो बिलीव किसको ओवर, बिलीव डाउट को ओवरकम करता है, या फिर बिलीव बनता है आ, वो फेज से गुजरने के बाद? जी, इसमें फिर दो चीजें हैं। आपका पर्सनल नेचर कैसा है उस पर बहुत डिपेंड करता है। अगर आपको नेचर है कि कुछ भी हो जाए मुझे तो खुद पे भरोसा है, तो फिर कितना ही डाउट हो हम्म। आप कर लो। और फिर जो हम्म। दूसरे लोग रहते हैं जिनको बिलीव होता है कभी कभी नहीं होता, तो फिर उनके पास वो हो गया ना कि अगर ये डाउट क्लियर हो जाए तो मुझे और बिलीव हो जाएगा इस चीज पे। फिर वो लोग एग्जैक्टली। आउटसोर्सिंग के लिए देखते हैं कि कोई मेरे को ट्रिगर कर दे कि ऐसा ऐसा है, ये करना है, ऐसा ऐसा करेगा तो तू अचीव कर लेगा। फिर मुझे बिलीव होने लगता है कि यार अगर इसने बोल दिया तो यार अब हो ही जाएगा, तो फिर मैं कर लेता हूँ। तो इस चीज में ना राइट। फैमिली फ्रेंड्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हम हम्म। हमारे पास आइडिया आता है, हम सबसे पहले कैसे आ जाते हैं दोस्तों में, यार हाँ भाई ये हाँ आइडिया हाँ आया हाँ है। हाँ हाँ वही तो, हाँ अरे तू हाँ। क्या करेगा यार, तेरे से होता है क्या, हम्म। तू कुछ नहीं कर सकता। वही तो बात खत्म हो जाती है। वही तो एक टोटली ब्रेक करना है रिलेटेबल। आपको। अगर दोस्त, एक दोस्त नहीं बोलते अरे तू कर, मैं खड़ा हूं तेरे साथ, तू कर लेगा मुझे अरे पता है। वो जो बिलीव देगा ना आपको, और वो फिर आपको पता नहीं 1 से 10 तक ऐसे लेके जाएगा, आपको पता नहीं चले यार इतना आगे आ गया। और वो तब आएगा कि जब आपको बाहर किसी और के रिएक्शन एक्शन से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क नहीं पड़ रहा। कि यार राइट। अगर ये बोल रहा है नहीं कर सकता, ठीक है, तू बोल रहा है, तेरे नेचर में है, तूने बोला है, मुझे पता है मैं कर सकता हूँ तो मैं कर लूंगा। अगर आपकी लाइफ और आपका नेचर दूसरों के एक्शन रिएक्शन पे चल रहा है, दूसरों के वैलिडेशन पे चल रहा है, देन भाई फिर वो तो बहुत रिस्की है। वैसा ना ही रहो तो ज्यादा बेटर है। फिर तो वही हो गया ना यार, कल को गाड़ी खरीदनी है, दोस्त ने मना कर दिया भाई ये गाड़ी बेकार है। आप तो आपके डिसीजन पे हो ही नहीं, आपकी डिसीजन दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं। तो फिर आप कैसे खुद पे प्रूव राइट। करके कुछ कर पाओ। ऑल राइट। फिर वहां से डिप्रेशन आ जाता है। वैलिडेशन नहीं कि सब लोग ही मिलता। नेगेटिव बोल रहे हैं, और वैलिडेशन नहीं आता, डिप्रेशन, हाँ। और आज के टाइम पे मैक्सिमम यूथ लोग बोलते हैं डिप्रेस्ड क्यों है, क्योंकि हर कोई वैलिडेशन ढूंढ रहा है बाहर। ठीक कर रहा है, हाँ। सोशल मीडिया पे हम क्यों पोस्ट कर रहे हैं, मैं स्टोरी क्यों डाल रहा है, क्योंकि मुझे वैलिडेशन चाहिए लोगों से कि आय हाय तू यहाँ घूमने गया, उसको अच्छा लग गया तो मुझे सेल्फ वैलिडेशन मिल गया कि भाई मैं तो सही कर रहा हूँ। राइट तो वहां से राइट। फिर आप क्योंकि दूसरों पे डिपेंड हो रहे हो ना, आप अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी चीजों के लिए। इसलिए आज का यूथ तो लोग बोलते हैं कि इतना डिप्रेस्ड और वैसा क्यों, लोनली क्यों फील करते हैं, क्योंकि हम हाँ हाँ। वैलिडेशन के लिए घूम रहे हैं। कोई हमको वैलिडेट कर दे कि भाई तू सही है तो फिर सब सही है, कोई बोल दे कि नहीं तू सही नहीं, तो फिर हम डिप्रेस हो जाते तो बेसिकली वी वांट ourselves टू प्रूव, मतलब लोगों को लगता है कि नहीं मेरे को इसको किसी को प्रूव करना है, तो देन आई विल गेट अ हैं। वैलिडेशन प्रूव फ्रॉम योर इट। सेल्फ। बट मैंने एग्जैक्टली, आई वाज कमिंग ऑन टू दैट, मैंने भी थोड़ा टाइम पहले यही रियलाइज करा कि बिफोर प्रूविंग योरसेल्फ टू समबडी एल्स, फर्स्ट प्रूव इट टू प्रूव इट योरसेल्फ। टू योर सेल्फ, हाँ बॉस, देन एट यू विल द हैव एंड। कॉन्फिडेंस, बिलीव इन एवरीथिंग। राइट, एट द एंड बॉस, आप ही हो जो आपको खिलाने वाला है, आप ही हो जो आपका पेट हम्म। पालने वाला है, आप ही हो जो आपका घर बार चलाने वाला है। दोस्त तो नहीं आ रहा, आ भी जाएगा तो एक हद हम्म। तक हेल्प करेगा, फिर वो भी गालियां बकेगा। आप ही हो हाँ। जो राइट। मेंटली फिजिकली इमोशनली खुद को खुश रख सकते हो। एक्सटर्नली आपको हैप्पीनेस मिल जाएगी बट वो टेम्पररी है। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस राइट। आपको खुद से ही मिलेगी और कहीं से नहीं मिल सकती। टोटली ट्रू। टोटली ट्रू। All right. So
एक लास्ट चीज, उसके बाद विल ट्राई टू सम अप दिस। एक अगर आपको बेसिक फ्रेमवर्क या एक रोड मैप या एक गाइडलाइन देना हो कि लाइक इफ somebody wants to start something, since it's all about beginners, so I want audience to have this, a sort of a quick road map जो फटाफट उसको प्लेस करके यू नो दे कैन बिल्ड, आई वुड से एटलीस्ट वो एक एमवीपी, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट तो एमवीपी बिल्ड बना कर ही पाए। सके। ऐसा एमवीपी बना सके, एक मतलब एक फ्रेमवर्क अगर आप प्रोवाइड कराना चाहो तो वो क्या फ्रेमवर्क होगा? फॉलो माई सीरीज, उसमें सब मिल जाएगा। बट डेफिनेटली। जोक्स अपार्ट, व्हाट यू कैन डू इज आइडिया, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो आप, आपका पर्पस क्या है उसके पीछे। पर्पस सही है या पर्पस सही नहीं भी होता, कभी कभार लगता है कि आगे चल के हो जाएगा, तो आप उसको एग्जीक्यूट करो, उसको डिस्कस करो लोगों के साथ। अभी हम क्या सोचते हैं ना कि यार मेरे दिमाग में आइडिया है, मैं ही ये कर लेता हूँ, मैं ही वो कर लेता हूँ, जब लॉन्च होगा ना तब मैं लोगों को बताऊंगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको लोग चाहिए, आपको वैलिडेशन, इस चीज में वैलिडेशन लगता है, इस चीज में वैलिडेशन लो, इस चीज में वैलिडेशन की बहुत नीड है। दोस्तों से पूछो क्या होगा, वो क्रिटिसाइज ही करेंगे, बट उनसे बोलो कि भाई तुम मेरे को मत बोल के मैं नहीं कर पाऊंगा, तुम मेरे बता, जो मैंने आइडिया बताया है ये काम करेगा नहीं करेगा, ये चलेगा नहीं चलेगा तेरे हिसाब से। 10 लोगों, और अगर आपको ये भी नहीं करना है, 10 रैंडम लोगों से बात करो, रैंडम इंस्टाग्राम पे मैसेज करो इन अ रिस्पेक्टफुल वे कि भाई ये मेरा आइडिया है, मुझे आपसे सजेशंस चाहिए कि मैं इस चीज को कर रहा हूँ, सही रहेगा कि नहीं रहेगा, आपके हिसाब से क्या लगता है। 10 15 20 लोगों से वैलिडेशन लो, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। उसके बाद अगर आपको नेगेटिव रिव्यूज आते हैं, फिर आपके ऊपर है अगर आपको करना है नहीं करना है, बट आपको कंप्लीटली इस चीज पे भी रिलाई नहीं होना है कि यार उसने मना कर दिया फिर छोड़ देता हूँ। सेल्फ बिलीव भी एक चीज होती है कि नहीं यार मुझे लगता है कि मैं कर लूंगा, तो फिर आप उसको ट्राई करो, एमवीपी बिल्ड करो, फिर लोगों को दिखाओ, टेस्ट एंड ट्रायल करो। जितना ज्यादा टेस्ट एंड ट्रायल करोगे चीजों के साथ, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो कुछ भी हो। आपने टी शर्ट का बिजनेस शुरू करना है, आप ये मत करो कि पहले ही दिन मैंने 100 टी शर्ट बना ली। 2 टी शर्ट बनाओ, 2 टी शर्ट की प्रिंटिंग करवाओ, सब कुछ करो, उनको लेके आओ, उनकी क्वालिटी चेक करो, लोगों को दिखाओ, पहन के देखो, अपने आपसी वालों को पहनाओ, भाई अच्छी लग रही है नहीं लग रही, डिजाइन और अच्छी हो सकती नहीं हो सकती। क्या होगा, आपने 100 बना ली, क्वालिटी इतनी अच्छी आई नहीं, 100 तो वेस्ट जाएगी ही जाएगी। 2 बनाओ, धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट आएगा ना, धीरे धीरे करके चीजें और बेटर होंगी। तो पूछो, बात करो, डिस्कस करो लोगों से, चीजें करो, मतलब बहुत चीजें होती हैं। ऑनलाइन आप रिसर्च कर सकते हो, किसी को आप मानते हो कोई अच्छा मेंटोर है तो उनको मैसेज करो, अगर उनका रिप्लाई आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो दुखी मत होना, ऐसे सैड नहीं होते। बट अपनी तरफ से आप एफर्ट डालते रहो कि उस स्पेसिफिक चीज को मैं कैसे और बेटर बना सकता हूँ, जिससे कल को अगर मैं उसको लॉन्च करूँ तो वो परफेक्ट वे में बूम कर जाए। उस वे में आप आगे बढ़ो। हाँ भाई, तो मतलब अगर इसको सम अप मेरे को करना हो तो पहला तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफिकेशन करो। प्रॉब्लम नहीं भी है, अगर वो स्मॉल स्केल बिजनेस भी कर रहे हो तो भी फिगर आउट करो कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन है नहीं है। रिसर्च करो जितना हो सकता है, और रिसर्च के लिए खुद करो तो ज्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ किसी को बोल रहे हो या किसी को रखो, क्योंकि आपका बिजनेस है, आपको पता है मुझे ये बिल्ड करना है। रिसर्च करूंगा तो मुझे और ओपन होके पता चलेगा कि यार जैसे हमने गॉसिप सर्कल चालू किया तो हमने ऑलमोस्ट, अभी भी हम रिसर्च फेज में ही है, बट हमको ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है, मतलब हो जाएगा रिसर्च में ही। प्रॉपर दे रहे हैं हम डेप्थ में कि जीरो से लेके क्या होता है, पानी पूरी कैसी होती है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या है ये। वो छोटी छोटी माइन्यूट चीजें ना आपको चेंज लाएगा, छोटा छोटा चेंज वो आगे चल के बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला देता है। छोटी छोटी माइन्यूट डिसीजन, छोटे छोटे माइन्यूट चेंजेस आपकी चीजों में बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला देते हैं आने वाले टाइम में। एंड आफ्टर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हम मतलब किसी बिजनेस को इम्प्रूव भी करना चाहें जो हाँ ऑलरेडी एक्सिस्टिंग बिजनेस है, हाँ नेक्स्ट स्टेप वी नीड टू बिल्ड अ मिनिमल वायबल प्रोडक्ट। हाँ। जो भी हम बनाएंगे एमवीपी, उसके लिए हमको ट्राई एंड टेस्ट, छोटा बनाओ, कम छोटा बनाओ, बनाओ, हाँ, लोगों टेस्ट से करो, ट्रस्ट टेस्ट करवाओ, लोगों से टेस्ट करो, अननोन लोगों से टेस्ट करो, वो आपको ऑथेंटिक फीडबैक देंगे और कि क्या अच्छा। है, और अच्छा फीडबैक देंगे आपको कि यार ये चलेगा नहीं चलेगा, मैं होऊंगा तो मैं पहनूंगा नहीं पहनूंगा, या मेरे को अच्छा लग रहा नहीं लग रहा, मेरे को कंफर्ट लग रहा नहीं लग रहा। लोग आपको बताएंगे, वहां से आपको इम्प्रूवमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। जितना ज्यादा फेल होगे तो ज्यादा फिर आप बेटर प्रोडक्ट बना सकते ऑलराइट, ओके। एंड देन उसके बाद फिर अगर आपका पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है तो देन अगेन ट्राई हो। टू और रिबिल्ड इट। रीबिल्ड करके और उसको बड़ा करो आप।
ओके, एंड द कोर अंडरलाइन जो भी आप इसको बोलना चाहोगे, इट्स एग्जीक्यूट। इज एग्जीक्यूशन, हाँ। मेंटल गेम से नहीं होता भाई। मेंटली आप पूरा प्लान बना लो, रोड मैप बना लो, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा वैसा करूंगा, जब तक आप कर नहीं रहे ना, तब तक अभी देखो, बोलने को बहुत अच्छा लगता है मैंने आज ये किया करूंगा, फिर मैं इसको ऐसा करूंगा, फिर ऐसा हम्म। करूंगा। आपको नहीं पता पहले से दूसरे स्टेप के बीच में कितनी हर्डल्स आने वाले हैं। दूसरे से तीसरे एग्जैक्टली। जाने में ऐसा भी हो सकता है कि आप इतना डिप्रेस हो जाओ कि यार मेरे को बंद ही करना है। तो वो तब होगा ना जब आप हम्म। करोगे। मेंटली इमेजिन कर लिया कि यार ये 10 स्टेप में मेरा बिजनेस 10 लाख का बन जाएगा, ऐसा ऐसा करूंगा, ये करूंगा, ये ऐसा एकदम परफेक्ट प्लान है, सब कुछ परफेक्ट है। एग्जीक्यूशन पे आया दूसरे दिन ही कहानी खत्म हो गई। तो वो फिर राइट। डिमोटिवेट करता, डिप्रेस करता है, यार ये तो चला ही नहीं। क्योंकि हमने खुद को ही इतना बना ऑलराइट। लेते कि यार ये तो कर ही देंगे, इतना अच्छा दिख रहा है, ये दिखने से नहीं होता भाई, करने से होता है। एग्जीक्यूशन इज द की। एग्जीक्यूशन इज डेफिनेटली द की, किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में। All right. On that note, let's just end this podcast. And it was a pleasure talking to you. I get to know a lot of things about थैंक यू business भाई, and थैंक यू। entrepreneurship, and it was truly, मतलब मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लग रहा है। ऑडियंस को डेफिनेटली मजा आना चाहिए इससे। इट वाज एन इंसाइटफुल सेशन फॉर मी। मेरे को काफी सारी चीजें जो मेरे को अपने फ्यूचर बिजनेस से रिलेटेड थे, वो बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। ओके। एंड डेफिनेटली जो लोग सुनेंगे उसको उनको भी हो जाएगी। सो फॉर श्योर, फॉर थैंक यू श्योर। सो मच ऋतिक। एनी टाइम, एनी टाइम।